بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیں وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جونقوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو نہ گہاں زنانے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگتے لگتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 سورتوں میں کیا گیا ہے، ایک سورۃ نساء، دوسری سورۃ نام، تیسری سورۃ یونس، چوتھی سورہ صافان، پانچویں سورۃ انبیاء اور چھٹی سورۃ القلم۔ ان میں سے 4 پہلی سورتوں میں نام مذکور ہے اور 2 آخر کی سورتوں میں الزنون اور صاحب ہوت کہہ کر صفت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ سورۃ نساء اور سورۃ انعام میں انبیاء کی فہرست میں فقط نام مذکور ہے، باقی سورتوں میں واقعات پر مختصر روشنی ڈالی گئی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی حیات طیبہ کے صرف اس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے جو ان کی پیغمبرانہ زندگی سے وابستہ ہے اور جس میں رشد و ہدایت کے مختلف گوشے دعوت بصیرت دیتے ہیں۔ مورخین اور مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اسرائیلی نبی تھے، لیکن انہیں نینوا شہر کے باشندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اور نینوا شہر میں اس وقت اشوری عرب آباد تھے جن کا مرکزی شہر نینوا تھا اور موجودہ شہر موصل بھی اسی عملداری میں شامل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اشوری قوم کون تھی جس کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، ان کی گمراہی کے کیا اسباب تھے، اور پھر اس دور میں ان کے مرکزی شہر نینوا کی کیا اہمیت تھی۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے حالات اور ان کی قوم کی گمراہی اور ہدایت پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔ جہاں تک قوم آشوریوں کا تعلق ہے تو یہ بنیادی طور پر عرب تھے۔ مورخین انہیں سامی گروہ میں شامل کرتے ہیں۔ قدیم دور میں زمانہ قبل مسیح کے دوران عربوں کے مختلف قبائل اور گروہ صحرائے عرب سے اٹھ کر شمال کی آباد زمینوں میں جا کر بستے رہے، اور وہاں انہوں نے ایسی شاندار ترقی کی، اپنی ایسی سلطنتیں قائم کی کہ ان سلطنتوں کی طاقت و قوت کو انہوں نے بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔ صحرائے عرب سے نکل کر شام کا رخ کرنے والے عرب گروہوں میں سے سب سے پہلے اموری ہمارے سامنے آتے ہیں جو صحرائے عرب سے نکل کر شمال کی طرف گئے۔ اس کے بعد صحرائے عرب سے کنانی نکلے جن کو یونانیوں نے آشوریوں فوسیقی کہنا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ آشوری صحرائے عرب سے نکل کر شمال کی طرف گئے۔ چوتھا گروہ جو صحرائے عرب سے اٹھ کر شمال کی طرف بڑھا وہ آرامی تھے، بلکہ عبرانی جو آج کل اسرائیلی یا یہودی کہلاتے ہیں وہ بھی صحرائے عرب سے نکل کر شام کی طرف بڑھے اور وہاں انہوں نے ترقی کی اور پھلے پھولے۔ ہمارا تعلق چونکہ یہاں آشوریوں سے ہے جن کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، لہٰذا آشوریوں کے حالات تفصیل سے بیان کیے جائیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ آشوریوں کے کسی دور میں کسی جگہ اور کون سے سن میں کسی بادشاہ کے دور میں حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا شہر کی طرف ہدایت کے لیے کہا گیا اور آشوریوں کے لیے وہ نبی مبعوث ہوئے۔ بہرحال یہ آشوری عرب بہت پہلے عرب کے ریگستانوں سے اٹھ کر شام کی سرزمینوں کی طرف گئے۔ بقول مورخین یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور دوسری سامی اقوام کی طرح یہ بھی عرب کے دشت زاروں سے اٹھ کر شمال کی طرف بڑھے۔ کچھ عرصہ تک ان لوگوں نے قدیم 2 اقوام یعنی اکادیوں اور سمیریوں کے پاس قیام کیا، اس لیے کہ اس دور میں اکادی اور سمیری عزت و عظمت اور طاقت کے لحاظ سے اپنے عروج پر تھے۔ کچھ عرصہ ان طاقتور قوموں کے پاس قیام کرنے کے بعد آشوری پھر حرکت میں آئے اور ان دونوں بڑی طاقتوں کو چھوڑ کر پھر آگے بڑھے۔ یہ لوگ بابل کے آس پاس عارضی طور پر آباد ہو کر گزر بسر کرنے لگے۔ آخر یہ لوگ بابل سے بھی ترک وطن کر کے دریائے فرات کے آس پاس کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک ریاست قائم کر لی جو آشور کے نام سے موسوم ہوئی۔ ان کا پایا تخت شروع میں آشور شہر ہی تھا۔ آشور کے بعد انہوں نے ایک دوسرے شہر تالاج کو اپنا مرکزی شہر بنایا۔ کچھ عرصہ یہی شہر آشوری قوم کا پایا تخت بنا رہا۔ آخر یہ قالاج شہر بھی اپنی مرکزیت کھو بیٹھا کیونکہ تجارت
और दीगर उमूर के लिहाज से नैनवा शहर बाकी सारे शहरों से बाजी ले गया था। लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए आशूरियों ने अपनी सल्तनत का मरकजी शहर नैनवा को करार दिया। आशूरी शुरू में ज़राअत पेशा थे, लेकिन इस नई मुमलिकत में काबिल का शत ज़मीन बहुत कम थी और जो सरजमीन बाबल की तरह सरसब्ज और शादाब ना थी, इसलिए इन्होंने लौटमार को अपना पेशा बनाया और हर साल मौसम बहार में हमसाया ममालिक में ये लोग कत्ल वाओ गारत गिरी, तख्तो ताराज और तरकताज और एलगार करते, और जो लोग उनके हाथों असीर होते इन्हें गुलाम बना लेते और उनसे मेहनत वाओ मशक्क़त के काम लेते। ये आशूरी इंतहाई ताकतवर थे और शुरू में बेरहम और शिकी अलकलब भी थे। कत्ल वाओ गारत को खुदा की मंशा के मुताबिक समझते थे। आशूरियों की संगदिली की एक वजह यह भी बताई जाती है कि इनकी तादाद कम थी और उनके ताबे फरमान इलाके बहुत वसी थे, इसलिए वो मफतो अक़वाम को मरूब और मतबा रखने के लिए उनके साथ जालिमाना सुलूक और रवैया रवा रखते थे। शुरू में आशूरी कौम के लोग अपने अपने सरदारों के तहत जिंदगी बसर करते रहे और इन सरदारों के तहत काम करते हुए आसपास की दूसरी कौमों पर शब खून मार कर लौट मार का काम करते। कुछ अरसा बाद इस कौम में वो दूर आया कि उनके दो सरदारों ने, जिनके नाम इसमी दादान और शुमाश रामन था, आशूरी कौम को मुत्तहिद करके एक बड़ी ताकत बनाने की कोशिश की थी। ये दोनों सरदार बाप बेटा थे। इसमी दादान बाप था और शुमाश रामन इसका बेटा था। ये दोनों किसी हद तक कौम आशूर को मरकजियत देकर उसे एक ताकत और कुव्वत बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन इन दोनों के बाद आने वाले लोगों ने इस तरफ कोई ध्यान ना दिया और ये कौम पहले की तरह अपने अपने सरदारों के बातहत काम दिया सरंजाम देने लगी। इसके बाद आशूरी कौम ने फिर करूट ली। उनमें से एक हुक्मरान उठा, इसका नाम शाहपिल असर था। इसने हैरत अंगेज तौर पर इस कौम को फिर मुत्तहिद किया। तारीख में उसको नगलत पलासर के नाम से भी मौसूम किया जाता है और ये नगलत पलासर मुत्तहिदा कौम आशूर का बादशाह बना। ये शख्स इंतहाई जुरतमंद, जरी और दिलेर था। इसने आशूरियों का एक बहुत बड़ा लश्कर भी तैयार कर लिया और इस लश्कर के जरिया इसने आसपास की ताकतवर कौमों को ज़ेर और मगलूब करने का इरादा भी कर लिया। अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करने के बाद आशूरियों का यही बादशाह नगलत पलासर आंधी और तूफान की तरह हरकत में आया। पहले उसने बाबल को अपना हदफ बनाने की कोशिश की, इसलिए कि बाबल से आशूरियों को कुछ शिकायत थीं। दरअसल माजी में कुछ आसपास के वशी कबाइल आशूरियों पर हमला आवर होते थे और उनके मरकजी शहर नैनवा के अतराफ में लौट मार का बाजार गर्म करते थे और बाबल की हुकूमत उनकी पुष्ट पनाही किया करती थी। बाबल में उस वक्त कासी कौम की हुकूमत थी। ये कासी बुनियादी तौर पर कुर्द थे और जबल जागरू उनका बड़ा मरकज था और वहीं से उठकर ये बाबल पर काबिज हो गए थे। बहरहाल आशूरियों का बादशाह नगलत पलासर अजाब बनकर बाबल पर हमला आवर हुआ। कासियों को उसने बदतरीन शिकस्त दी और बाबल पर कब्जा कर लिया। अब बाबल की फतह के बाद आशूरियों की ताकत और कुव्वत में बेपनाह इजाफा हुआ और उनकी सल्तनत वसी से वसी तर होती चली गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम आशूरियों से मुतालिक मुअर्रिखीन मजीद लिखते हैं कि आशूरियों ने पहले पहल तगलत पलासर अवल के मातहत अजीम उश्शान सल्तनत के रास्ते पर कदम रखा, जो किसी हद तक कबल अज़ वक्त था। नगलत पलासर ने 1094 काफमी में शाम पर हमला किया और फातेह करार पाया। इसके बाद वो जबल तारूस की तरफ बढ़ा, जो एक बहुत बड़ा कोहिस्तानी सिलसिला है, आजकल अनातोलिया के मैदानों में है और तुर्की की हुकूमत में शामिल है। यहाँ इस दौर में एक जबरदस्त कौम आबाद थी। इन आशूरियों ने अपनी ताकत वक़ूत से हतियों को भी रौंद कर रख दिया और ऐलान किया कि हतियों के जानशीन की हैसियत से हम शाम के मालिक हैं। इसके अलावा जबला इर्द, वसो सदा और दूसरे कई इलाकों ने इताअत कबूल कर ली। इस फतह के दौरान आशूरियों के बादशाह ने बड़े बड़े चट्टान कटवाए और अपने देवताओं का बुत बनाने की गर्ज से इन्हें आशूर ये भेज दिया। वो समंदर के रास्ता पलटा और बकौल मुअर्रिखीन उसने बड़ी घोड़ों और डोल्फिन का शिकार किया। दो आब दजला वाव फरात के मुतअद्दिद हुक्मरानों ने इसकी इताअत कबूल की। तगलत पिलासर ने दरियाए फरात के पास जितना इलाका था फतह किया और बहुत जल्द आरामी पर हमला आवर काबिज हो गए। ये आरामी भी अरब के सहराओं से निकलकर शुमाल की इन सरजमीनों की तरफ आए थे और ये भी बुनियादी तौर पर अरब ही थे।
चुनाचे जब आरामियों ने इन आशूरियों के फतह करदा इलाकों को दोबारा वापस ले लिया तब आशूरियों का एक बादशाह आशूर नासिर पाल 884 काफमीम से 859 के दौरान हरकत में आया, जो इलाके आरामी अरबों ने आशूरी अरबों से लिए थे दोबारा उन पर कब्जा किया। चुनाचे जो हिकमत अमली उससे पहले आशूरियों के बादशाह तगलत पिलस्सर ने शुरू की थी, वही इस दूसरे बादशाह आशूर नासिर पाल ने की और शुमाल की तरफ बढ़ते हुए कई इलाकों को ज़ेर किया। फिर वो जुनूब की तरफ बढ़ा और दरियाए आसी को अबूर करके लेबनान में दाखिल हो गया। इस तरह किसी बड़ी मुज़ाहमत के बगैर समंदर के किनारे पहुंच गया। यहीं कनानी या फोनिकी शहरों ने आर्जी तौर पर इसकी इताअत कबूल कर ली। फोनिकियों को दूसरे अल्फाज में कनानी भी कहा जाता है। यूनानी इन्हें फौसिकी कहते थे, दूसरी तो में इन्हें कनानी कहती थीं। ये भी बुनियादी तौर पर अरब ही थे और अरब के सहरा से निकलकर ये शुमाली इलाकों की तरफ गए थे। आशूरियों की तरफ से दो आबा दजला वाव फरात से शाम पर ये पहला हमला था और इसकी कैफियत फिरौन मिस्र के इस हमले की सी थी जो 100 साल पीछतर शाम पर हुआ था। चुनांचे आशूरियों के बादशाह आशूर नासिर पाल और उसके बेटे और जानशीन कलब नासिर सालिस ने वो अस्करी और फौजी तरबियत मुकम्मल की जिसकी वजह से उनका वतन और उनकी सल्तनत मगरबी एशिया की एक अजीम ताकत बनकर उभरी। कलब नासिर को 853 काफमीम में कर के मैदान में जो वादी असी के अंदर वाक़ है शाम के मुत्तहिदा रियासतों से जंग पेश आई। इन मुत्तहिदा क़ुव्वतों का रईस दमिश्क का आरामी बादशाह था। इसराइल का बादशाह आखाब वाव मेज़ सुवर और दूसरी फोनिकी शहरी रियासतों के नुमाइंदे भी शाम की मुत्तहिदा क़ुव्वत में शामिल हो गए थे। लेकिन आशूरी अरब अब बहुत ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत पकड़ चुके थे, लिहाजा उनके बादशाह मशलब नासिर ने इस मुत्तहिदा क़ुव्वत को शिकस्त फाश दी और ये फतह जो आशूरियों की अजीम फतह थी फैसला किन साबित हुई, इसलिए कि आशूरियों का बादशाह शलब नासिर अपने कतबात में बार बार जिक्र करता है कि उसे शाम और फ़लस्तीन की तस्खीर के लिए हमें तैयार करनी पड़े। 842 काफमीम में तमाम फोनिकी शहरों ने मुकम्मल तौर से आशूरियों की इताअत कबूल कर ली। चुनांचे अपने एक कुत्तिबा में मशलब नासिर इस फतह का जिक्र यूं करता है। PDF अपने अहद हुकूमत के 18वीं साल में ने दरियाए फरात को 16वें मरतबा अबूर किया। आरामियों के बादशाह खराइल को अपनी फौज पर भरोसा था। मैंने इसका तख्ता अलट दिया। फिर मैंने बाली रासी की जानिब पेश कदमी की जो एक पहाड़ी है और समंदर के अंदर चली गई है। मैंने अपना मुजस्समा वहां नस्ब किया और फिर सूर और सैदा के लोगों और यहुआ इब्न उमरी से खराज वसूल किया। शलब नासिर और उसके बाप ने शाम की तस्खीर से जिस सल्तनत की बुनियाद रखी वो एक बार फिर जवाल का शिकार हो गई। लेकिन एक सदी बाद तगलत सर सालिस और उसके जानशीन ने इसमें असर नौ ताज़ा रूह फूंकी। चुनांचे 747 काफमीम से 741 काफमीम तक तकलत पलासर ने अरफाद में अपना जंगी मरकज कायम किया और वहां से शाम की तस्खीर के लिए असर नौह में भेजता रहा, खुद भी जाता रहा। उसके बेटे कलब नासिर पंजुम ने फोहिकी और इसके शहरों को पामाल कर डाला, जैसा कि जोजी फिश ने सामी रिवायात की बिना पर बयान किया है। इसके अलावा सी2 फिक्र सूर के शहर जो साहिल पर वाक़े थे इन्होंने एका कर लिया। वो चाहते थे कि सूर शहर के माल पर कंट्रोल और सैदा से अलहदगी हासिल कर लें जो जजीरे में वाक़े था। चुनांचे इन्होंने हमला आवर की बरतरी कबूल कर ली। एक बैरा इसके लिए तैयार कर लिया जिसमें 60 जहाज थे और उनमें 800 फोनिकी मला सवार थे। जजाइर सूर से तलब नासिर के बेरे की लड़ाई हुई, लेकिन ये बैरा शिकस्त खाकर बिखर गया। मलब नासिर ने खुश्की पर इतने लश्कर जुमा कर लिए कि 20 जजीरा सूर की नाकाबंदी किनारे की तरफ से जारी रही। जजाइर के अंदर मीठे पानी के कनूई मौजूद थे। लाम हजार शहर की ज़रूरतें पूरी होती रहीं। 5 साल के मुहासरे में भी शहर हवाले न हुआ और 724 काफमीम में बाइज्जत अहदनामा हो गया। उसके बाद आशूरियों ने सामरा का मुहासरा 724 काफमीम में शुरू किया। कलब नासिर के जानशीन सरजान सोनी के अहद में ये शहर आशूरियों के सामने ज़ेर हो गया। सूर शहर के बादशाह एलवायली, जिसके मानी मेरा खुदा हकीकी खुदा है, ने आशूरियों का मुकाबला किया था। दरअसल वो मिस्र की तरफ माइल था। सरजान सोनी के अहद में वो साहिली इलाके की एक अहम शख्सियत बन गया था। मालूम होता है कि इसने फोनिकी के बड़े हिस्से पर इक़्तिदार हासिल कर लिया था।
और क़िब्रिस को भी फतह करने की कोशिश की थी। अंजामकार सरजान के बेटे और जानशीन सखीर बे ने एलवायली को क़िब्रिस से निकलने पर मजबूर कर दिया और इसकी जगह सैदा के बादशाह आयतबाल को हुक्मर इन बना दिया, जो आशूरियों का हामी था। आशूरी हमला आवरों ने पहले एलोएली के गरमाई महल को आग लगाई, जो लेबनान में वाक़ था, और इसे ताकत व ताराज कर डाले। फिर उनके लश्करी बरचियों देव अरुण के नीचे सैसतानी बुलंद चोटियों पर चढ़ गए, जहां दरख्तों के झुंड में एलवायली का किला था। इसके मुहाफिज दस्ते के आदमियों की आंखों पर पट्टियां बांधकर इन्हें सखरब की पेशगाह में पहुंचाया गया। सखरब ने दरियाए क्लब के किनारे एक चट्टान पर एक नक्श छोड़ा था। जवाब तक देखा जा सकता है वो इस तरह हमला आवर हुआ था जिस तरह ब्रेडिया रिवर पर हमला आवर होता है। चुनाचे इसकी याद अब तक ताज़ा है। सनखीर बे को खलीज फारिस में इसीलिए हंगामा आराई का मौका मिल गया कि इसे फोनिकी के जहाज और मला मिल गए थे। सैदा शहर ने 701 काफमीम में सखरब की इताअत कबूल की थी, लेकिन इसके बाद 670 काफमीम में उसके बेटे सरहदून के खिलाफ सरकशी की। इसने सैदा को बर्बाद कर डाला। इसकी दीवारें समंदर में गिरा दी गईं। इसका बादशाह अबद मलकारत समंदर में कूद पड़ा, लेकिन उसे निकाल लिया गया और सर कलम कर दिया गया। साथ ही आशूरियों के बादशाह ने एक किला तामीर कर लिया था ताकि शहर पर दहशत तारी रहे। उर्दूस के बादशाह ने जब ये हालत देखी तो अपना शहर खुद ही आशूरियों के हवाले कर दिया, साथ ही अपनी बेटी का रिश्ता आशूरियों के बादशाह को दिया। फिर इस हालात को देखते हुए दीगर बहुत से शहरों ने आशूरियों की इताअत कबूल कर ली। इसके अलावा इनके दरमियान एक पक्का अहदनामा भी हो गया, जिसे सूर के बादशाह ने उस वक्त तोड़ा जब समझ लिया कि गैर मुल्की इक़्तिदार का जो अभिगने का वक्त और मौका आ गया है। दरियाए क्लब के किनारे रमसीस वाली चट्टान और सिल के करीब एक सिल है जो ये नक्शा पेश कर रही है कि सरहदून अजमत और जलाल के साथ खड़ा हुआ कतबे की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें ममफस यानी मिस्र के मरकजी शहर के अलावा सकलान और सूर की तस्खीर का जिक्र है। शुमाली शाम एनताब के मगरिब में वहाँ एक और चट्टान है जिस पर सरहदून की तमसाल बनी हुई है। वो एक रस्सा लिए खड़ा है जिसे सूर के बादशाह और मिस्र के बादशाहों की नाकों के अंदर परवा रखा है। वाकया ये है कि मिस्र का बादशाह दर्जा का कभी किसी की कैद में ना पड़ा। मालूम होता है कि इस तमसाल का मकसद भी दूसरी आलमी जंग में मुहूरी ताकतों के ऐलानात की तरह महज प्रोपेगेंडा था। सरहदून और उसके बेटे आशूर बनी पाल के अहद में मिस्र फतह हो गया और आशूरी सल्तनत, जिसका दार अल हुकूमत नैनवा था, अपनी वसत की आखिरी हद पर जा पहुंचा। और यूनुस भी रसूलों में से थे। जब भागकर भरी हुई किश्ती में पहुंचे, उस वक्त कुरा डाला तो इन्होंने जुक उठाई। फिर मछली ने उनको निगल लिया और वो काबिल मलामत काम करने वाले थे। फिर अगर वो अल्लाह की पाकी बयान न करते तो इस रोज तक के लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। इसके पीठ में रहते फिर हमने उनको, जबकि वो बीमार थे, फराख मैदान में डाल दिया और इन पर करों का दरख्त उगाया और उनको लाख लिया। इससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। जहां तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नसब का ताल्लुक है तो मुअर्रिखीन इस्लाम और अहल किताब इस पर मुत्तफिक हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नसब से मुतालिक इससे ज्यादा और कोई बात साबित नहीं कि उनके वालिद का नाम मती था। और बाज़ लोगों ने कहा है कि मती हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम है, मगर ये बड़ी गलती है, इसलिए कि बुखारी की एक रिवायत में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से बसराहत मज़कूर है कि मती वालिद का नाम है और अहल किताब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम यूना और उनके वालिद का नाम अमती बताते हैं। लिहाजा यूनुस बिन अमती और यूना बिन अमती में कोई नुमाया इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि ये अरबी और अबरानी जुबानों की लफ्जी तबीर का फ़र्क है। जहाँ तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मबऊस किए जाने के ज़माने का ताल्लुक़ है तो हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने का तयन तारीख़ी रोशनी में तो मुश्किल है। अलबत्ता बाज़ मुअर्रिखीन ने ये ज़रूर कहा है कि जब ईरान यानी फ़ारिस में तवाइफ अल-मलूकी का दौर था, उस वक्त नैनवा में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ था। महक़क़ीन जदीद ने फ़ारिस की हुकूमत को 3 अहद में तक़सीम किया है। एक, हमला सकंदर आज़म तुम से पहले, दूसरा पारतोए हुकूमत यानी तवाइफ अल-मलूकी का दौर, और तीसरा असासानी अहद ईरान का पहला दौर उरूज और एक तरह से इर्तिका का दौर था।
ये एक तरह से कनानी हद से शुरू होता है, जिसमें कि कबाद वाओ कैकाउस हिफत खू इन रुस्तम अफरासियाबो कैखसर वाओ लहरिस्त गुश्तासप वाओ असफंदिया और बहन दराज दसत जैसे जबरदस्त हुक्मरान पैदा हुए। ईरान के दूसरे अजीम दुर्ग और बनी मुंशियहत का नाम दिया जाता है। इसमें को रविश आजम व कम्बूचिया वाओ दारियुश अवल वाओ जरकसीर उर्दशीर वाओ दरज दसत दारियुश दोयम इर्दशीर दोयम उर्दशीर सुइम और दारियुश सुइम जैसे हुक्मरान गुजरे। इसके बाद इस सर जमीन पर सिकंदर आजम हमला आवर हवा और उसने ईरानी ताकत वकूत को कुचलकर मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अलामत तज्जुब। फिर ईरान में सासानी दौर शुरू होता है। ये भी ईरान के खरूज और तरक्की का दौर है, जिसमें उर्दशीर शाहपुरा और हरमजावल बहराम अवल बहराम दोयम नरसी रमज दोयम आजर नरसी शाहपुर आजम उर्दशीर दोयम शाहपुर सुइम बहराम चहाम यजदगरद गनहगार बहराम पंजुम यजदगरद दोयम रमज सुइम फिरोज अवल बालाशकबाद खुसरो रमज चहारम और खुसरो परवेज जैसे नामवर हुक्मरान गुजरे। इस तहकीक के पेश नज़र हाफिज इब्न हजर की नकल के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का अहद 372 काफ मीम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के दरमियान होना चाहिए, मगर मुअर्रिखीन कहते हैं कि यह कौल तारीखी नुक्ता नज़र से गलत है। इसलिए मुअर्रिखीन का इस पर इत्तिफाक है कि बाबरियों के हाथों आशूरियों का मशहूर शहर नैनवा 612 काफ मीम में तबाह व बर्बाद हो चुका था। इलावा अज़ीम अहल किताब की रिवायात ये शहादत देती हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अहद के बाद यानी 690 कम में जब अहल नैनवा ने दोबारा कफर व शरक व जुल्म व सितम शुरू कर दिया और उनकी सरकशी बहुत बढ़ गई, तब एक इसराइली नबी ताहोम अलैहिस्सलाम ने दोबारा उनको समझाया और हिदायत व रशद की दावत दी, और जब इन्होंने कोई परवाह नहीं की तो नैनवा की तबाही की पेशगोई फरमाई और इसके 70 बरस बाद यानी 612 काफ मीम में नैवान तिबावाओ बर्बाद हुआ। लिहाजा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का अहद 690 काफ मीम से भी कदीम होता चाहे। कालबा शाह अबद अल कादिर का यह कौल सही है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अहद से मुआसिर हैं, चुनांचे वो तहरीर फरमाते हैं हजरत के पारों में थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने बड़े शौक में इबादत की और दुनिया से अलग हवा और उनको भेजो शहर नैनवा में मशरिकों को मना करें बुत पहुँचने से। लेकिन इस जगह हजरत के नाम पर मुअर्रिखीन को आमतौर पर ये मुगालता हुआ है कि वो इस हजरत को बादशाह समझते हैं, हालांकि बनी इसराइल में इस नाम का कोई बादशाह नहीं गुजरा। दरअसल हजरत से मुराद मशहूर पैगंबर हजरत हैं। इस तहकीक से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इसराइली पैगंबर हैं। इमाम बुखारी ने किताब अल अंबिया में जिक्र किया है और अपनी तहकीक के मुताबिक जो तरतीब कायम की है, इसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान किया है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। चुनांचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ही के सिलसिला में अल्लाह ने सूरत यूनुस में फरमाया, और फिर ऐसा क्यों न हवा के कौम यूनुस की बस्ती के सिवा और कोई बस्ती ना निकली कि नज़ूल अजाब से पहले यकीन कर लेती और ईमान की बरकतों से फ़ायदा उठाती। यूनुस की कौम जब ईमान ले आई तो हमने रसोई का वो अजाब उन पर से हटा दिया जो दुनिया इनकी ज़िंदगी में पेश आने वाला था, और एक ख़ास मुद्दत तक सामान ज़िंदगी से बहरामंद होने की मोहलत दे दी। मज़ीद फरमाया, और यूनुस का मामला याद करो जब वो ऐसा हवा के वो राह हक में खुशमनाक होकर चला गया, फिर इसने ख्याल किया कि हम इसको तंगी आजमाइश में नहीं डालेंगे। फिर जब इसको आजमाइश की तंगी ने आन घेरा तो उसने मछली के पीठ में और दरिया की गहराई की तारीकी में पुकारा, खुदाया तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तेरे लिए हर तरह की पाकी है। हकीकत यह है कि मैंने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया। फिर सूरत साफान में फरमाया, शमा बके जिनसे, तब हमने उसकी दुआ कबूल की और इसे गमगीनी से निजात दी, और हम उसी तरह ईमान वालों को निजात दिया करते हैं। बेशक यूनुस पैगंबरों में से था, और वो वाकया याद करो जबकि वो भरी हुई किश्ती की जानिब भागा, और जब किश्ती वालों ने गिरक होने के खौफ से कुरा डाला तो दरिया में डाले जाने के लिए इसका नाम निकला। फिर निगल गई इसको पिछली, और वो अल्लाह के नज़दीक कौम के पास से भाग आने पर काबिल मलामत था। बस अगर ये बात ना होती कि वो अल्लाह की पाकी बयान करने वालों में से था तो मछली के पीठ में
क़यामत तक रहता, फिर हमने डाल दिया इसको मछली के पेट से निकाल कर चटील जमीन में, और वो नातवां और बेहाल था। और हमने एक बेलदार दरख्त का साया इस पर उगा दिया, और हमने इसको 1 लाख से ज्यादा इंसानों की जानिब पैगंबर बनाकर भेजा। बस वो ईमान ले आए, फिर हमने उनको एक मुद्दत तक सामान जिंदगी से नफा उठाने का मौका दिया। और सूरत अल-क़लम में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से मुतालिक फरमाया, वाओ पस अपने परवरिदगार के हुक्म की वजह से सबर को काम में लाओ, और पिछली वाले यानी यूनुस की तरह बेसबर ना हो जाओ। जबकि इसने अल्लाह को पुकारा और वो बहुत मगमूम था। अगर ये बात ना होती कि इसके परवरिदगार के फजल ने इसको आगोश में ले लिया था, तो वो जरूर चटील मैदान में मलामत शुदा होकर फेंक दिया जाता। पस उसके परवरिदगार ने उसको बरगज़िदा किया और इसको नेक बंदों में रखा। जहाँ तक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के हालात का मुफस्सल जिक्र है, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसका कुछ हिस्सा कुरान में मज़कूर है और कुछ रिवायात व हदीस और तारीख से साबित है, वो ये है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इराक में मुवस्सिल के मशहूर मकाम नैनवा में बसती थी। उनकी तादाद कुरान करीम में 1 लाख से ज्यादा बताई है। उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मबऊस किया, तो कौम ने ईमान लाने से इनकार किया। बस हक़ ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उन लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब आने वाला है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम में ये ऐलान कर दिया, तो कौम ने आपस में मशवरा किया, तो इस पर सबका इत्तिफाक हवा कि हमने कभी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए उनकी बात नजरअंदाज करने के काबिल नहीं है। मशवरे में ये तय हवा कि ये देखा जाए कि यूनुस अलैहिस्सलाम रात को हमारे अंदर अपनी जगह मुकीम रहते हैं, तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा। अगर वो यहाँ से कहीं चले गए, तो यकीन कर लो कि सुबह को हम पर अजाब आएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को इस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक सियाहत हुई और बादल की शक्ल में उनके सर पर मंडलाने लगा और फिजा आसमानी से नीचे उनके करीब होने लगा, तो उनको यकीन हो गया कि अब हम सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया ताकि उनके हाथ पर मुशर्रफ ब ईमान हो जाएं और पिछले इनकार से तौबा कर लें, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही इखलास नियत के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार में लग गए। बस्ती से एक मैदान में निकल आए। औरतें व बच्चे और जानवर सब इस मैदान में जुमा कर दिए। टाट के कपड़े पहनकर अजस वजारी के साथ इस मैदान में तौबा करने लगे और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आह वाओ बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और अजाब उनसे हटा दिया। और रिवायत में है कि ये आशूरा यानी 10वें मुहर्रम का दिन था। इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बत्ती से बाहरास इंतजार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाज़िल होगा। उनके तो बवस्तग़फ़ार का हाल उनको मालूम ना था। जब अजाब टल गया तो उनको फिक्र हुई कि मुझे झूठा करार दिया जाएगा कि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। इस कौम में कानून ये था कि किसी शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत ना पेश करे तो इसको कत्ल कर दिया जाता था। हजरत यूनुस को फिक्र हुई कि मुझे झूठा करार देकर ये लोग कत्ल कर देंगे। अनबिया अलैहिस्सलाम हर गुनाह और मसीद से मासूम होते हैं, मगर इंसानी फितरत और तबीयत से जुदा नहीं होते। उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तबई तौर पर मलाल था कि मैंने हुक्म इलाही का ऐलान किया था और अब मैं ऐलान की वजह से झूठा करार दिया जाऊंगा। अब मैं वापस जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? कौम के कानून के मुताबिक गर्दन जदनी बनूं। इस रंज वगम और परेशानी के आलम में इस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहाँ तक कि बहिरा रूम के किनारे पहुंच गए। वहाँ एक किश्ती देखी जिसमें लोग सवार हो रहे थे। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने पहचान लिया और बगैर किराए के सवार कर लिया। किश्ती रवाना होकर जब बीच में पहुंच गई तो दफता ठहर गई, ना आगे बढ़ती थी ना पीछे चलती थी। किश्ती वालों ने मना दी कि हमारी इस किश्ती की मनजानब अल्लाह की भी शान है कि जब इसमें कोई जालिम गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता कश्त है तो ये शती खुद ब खुद रुक जाती है। इस आदमी को जाहिर कर देना चाहे क्योंकि एक आदमी की वजह से सब पर मुसीबत ना आए। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनाहगार में हूँ, क्योंकि मैं अपने शहर से गायब होकर
کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا کہ اذن الہی نہ تھا کہ بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہیں ہونا چاہے تھی، اس لیے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرآن میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اتفاقا قرآن میں حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی ہر مرتبہ بحکم قضا و قدر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ یونس کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا، اگرچہ اس نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے یہ مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبعی سے کسی جگہ بغیر اذن خداندی منتقل ہو جائیں۔ اس دو شوہد خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔ چنانچہ اس طرح ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے لگی ہوئی تھی کہ یہ دریا میں آئے تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس کا جسم تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا، یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ ان کو زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ بہرحال اللہ کو معلوم ہے اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر گڑ گڑا کر خداوند قدوس سے دعا مانتے رہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کی بیل اگا دی جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ ہی کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گنہگار کس بات کی جلدی کریں گے، کیا جب وہ آ جائے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اور اب ایمان لائے اس کے لیے تو تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے، اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہ دوہاں اللہ کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے؟ اور اگر ہر ایک نافرمان مشخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ مفسرین، مورخین اور محققین لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ فرمانی کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ منکرین قوم ایسے وقت ایمان لے آئیں کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا، یعنی موت کے وقت یا وقوع عذاب اور مبتلائے عذاب ہو چکنے کے بعد یا قیامت کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کی توبہ اور ایمان قبول نہ ہوگا، اس سے پہلے اپنی سرکشی سے باز آ جائیں اور ایمان لے آئیں، بجز قوم یونس علیہ السلام کے کہ انہوں نے ایسا وقت آنے سے پہلے ہی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا دیکھا تھا تو فوراً توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے ہم نے ان سے رسوئی کرنے والا عذاب ہٹا لیا۔ اس واقعہ کا مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔
البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کا سامنے آنا یا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت، خواہ ہو طبعی موت ہو یا کسی دنیاوی عذاب میں مبتلا ہو کہ جیسے فرعون کو پیش آیا۔ DFBO اس لیے قوم یونس کی توبہ قبول ہو جانا عام ضابطہ الہی کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ماتحت ہے، کیونکہ اس نے اگرچہ عذاب آتا ہوا دیکھ کر توبہ کی، مگر عذاب میں مبتلا ہونے اور موت سے پہلے کر لی، برخلاف فرعون اور دوسرے لوگوں کے جنہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد موت کے وقت توبہ کی اور ایمان کا اقرار کیا، اس لیے ان کا ایمان معتبر نہ ہوا اور توبہ قبول نہ ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی ایک نظیر خود قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے جس میں کوہ کو ان کے سروں پر معلق کر کے ان کو ڈرایا گیا اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے توبہ کر لی تو وہ توبہ قبول ہوئی، جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں موجود ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا، ہم نے ان کے سروں پر کوہ کو معلق کر کے حکم دیا کہ جو احکام تمہیں دیے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عذاب کے واقع ہونے اور موت میں مبتلا ہونے سے پہلے محض عذاب کا اندیشہ دیکھ کر توبہ کر لی تھی۔ اس طرح قوم یونس علیہ السلام نے عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر اخلاص اور راہ وزاری کے ساتھ توبہ کر لی، جس کی تفصیل آگے ہے۔ اس کا توبہ کا قبول ہو جاتا ضابطہ مذکورہ کے خلاف نہیں ہے۔ بعض مفسرین اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ کچھ حضرات نے سخت غلطی کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف فریضہ رسالت ادا کرنے میں کوتاہیوں کی نسبت کر دی اور قوم سے عذاب ہٹ جانے کا سبب پیغمبر کی کوتاہی کو قرار دیا اور اسی کوتاہی کو سبب عذاب بنایا، جس کا ذکر سورۃ انبیاء اور سورہ صافان میں آیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، تو غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر چھوڑ دیا تھا، اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر عاشوریوں نے توبہ واستغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن میں پس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا۔ یہاں سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء کا گناہوں سے معصوم ہونا تو ایک مسلمہ عقیدہ ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اس کی تفصیل میں کچھ جزوی اختلافات بھی ہیں کہ یہ عصمت ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے ہے یا صرف کبیرہ سے، اور یہ کہ یہ عصمت قبل از نبوت کے زمانے کو بھی شامل ہے یا نہیں۔ لیکن اس میں کسی فرقہ کسی شخص کا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء سب کے سب ادائے رسالت کے فریضہ میں کبھی کوتاہی نہیں کر سکتے، کیونکہ انبیاء کے لیے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ جس منصب کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے اس میں کوتاہی کر بیٹھیں۔ یہ تو فرض منصبی میں کھلی ہوئی خیانت ہے، جو خیانت ہے جو عام شریف انسانوں سے بھی بعید ہے۔ اس کوتاہی سے بھی اگر پیغمبر معصوم نہ ہوا تو پھر دوسرے گناہوں سے عصمت تعالیٰ بے فائدہ ہے۔ تو اصول مسلمہ کے لیے ضروری تھا کہ اس کی تفسیر و معنی کی ایسی توجیہ تلاش کی جاتی کہ جس سے وہ قرآن اور حدیث کے قطعی ثبوت سے متصادم ہوں۔ مگر یہاں تو عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جس بات کو قرآنی اشارات اور صحیفہ یونس علیہ السلام کی تفسیر کے حوالے سے پیش کیا، وہ صحیفہ یونس علیہ السلام میں تو ہو جس کا اہل اسلام کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن اشارہ تو ایک بھی نہیں بلکہ ہوا یہ کہ کئی مقدمے جوڑ کر یہ نتیجہ زبردستی نکالا گیا ہے۔ پہلے تو یہ فرض کر لیا گیا کہ قوم یونس علیہ السلام سے عذاب ٹل جانا خدائی دستور کے خلاف واقعہ ہوا، جو خود اس آیت کے سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہے اور اہل تحقیق و ائمہ تفسیر کی تصریحات کے بھی خلاف ہے۔ اس کے ساتھ یہ فرض کر لیا گیا کہ خدائی قانون کو اس موقع پر اس لیے توڑا گیا کہ خود پیغمبر سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیا گیا کہ پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص وقت نکلنے کا مقرر کر دیا گیا تھا، وہ اس وقت مقررہ سے پہلے فریضہ دعوت کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اگر ذرا بھی غور و انصاف سے کام لیا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کا کوئی اشارہ ان مقدمات کی طرف نہیں پایا جاتا۔ خود قرآن کے ثبات میں اس بات کی وضاحت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی عام بستی والوں کے متعلق بطور اظہار افسوس یہ ارشاد ہے، وہ ایسے کیوں نہ ہوں گے کہ ایمان اس وقت لے آتے جس وقت ایمان مقبول اور نافع ہوتا ہے، یعنی عذاب میں یا موت میں مبتلا ہونے
से पहले ईमान ले आते तो उनका ईमान कबूल हो जाता, मगर कौम यूनुस अलैहिस्सलाम इससे मुस्तस्ना है कि वो आसार अजाब देखकर अजाब में मुब्तला होने से पहले ही ईमान ले आई तो उनका ईमान और तौबा कबूल हो गई। ये वाज़ेह मफ़हूम खुद बता रहा है कि यहाँ कोई खुदाई कानून नहीं तोड़ा गया, बल्कि इन खुदाई दस्तूर के मुताबिक उनका ईमान और तौबा कबूल कर ली गई। अक्सर मफसरीन बहर मुहीत व करतबी व दमशकी, मज़हरी वरा अलमानी वगैरह ने आयत का यही मफ़हूम लिखा है, जिसमें कौम यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होना आम कानून इलाही के तहत है। चुनांचे करतबी के अल्फाज के मुताबिक इब्न जवाद कहते हैं कि अजाब ने उनको इस तरह ढांप लिया था जैसे कब्र पर चादर, फिर चूंकि उनकी तौबा सही हो गई कि ये वक़ू अजाब से पहले थी तो उनका अजाब उठा लिया गया। तबरी कहते हैं कि कौम यूनुस अलैहिस्सलाम की तमाम अक़वाम आलम से ये खुसूसियत दी गई है कि मुआयना अजाब के बाद उनकी तौबा कबूल कर ली गई। ज़जाद ने फरमाया कि उन लोगों पर अभी अजाब पड़ा नहीं था, बल्कि अलामात अजाब देखी थीं, और अगर अजाब पड़ जाता तो उनकी तो ये कभी कबूल ना होती। करतबी कहते हैं कि ज़जाद का कौल अच्छा और बेहतर है, चूंकि जिस मुआयना अजाब के बाद तो बकबूल नहीं होती वो ये है कि अजाब में मुब्तला हो जाए, जैसा वाक़या फ़िरौन के साथ पेश आया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत से मालूम होता है कि कौम यूनुस अलैहिस्सलाम ने वक़ू अजाब से पहले तौबा कर ली थी। करतबी फरमाते हैं कि इस तकरीर व तफसीर पर ना कोई इश्काल है, न तरज़ न कौम यूनुस अलैहिस्सलाम की तखसीस। तबरी और दीगर मफसरीन ने भी इस वाक़या को कौम यूनुस अलैहिस्सलाम की खुसूसियत बतलाया है। इनमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि इस खुसूसियत का सबब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कोताहियत थी, बल्कि इस कौम का सच्चे दिल से तौबा करना और इल्म इलाही में मुखलिस होना वगैरह वजूहात लिखी हैं। कौम यूनुस अलैहिस्सलाम का अजाब टल जाना आम कानून कुदरत के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि इन मुताबिक था, तो इस कलाम की बुनियाद ही ख़त्म हो गई। इस तरह किसी पुरानी इशारे से ये साबित नहीं कि अजाब की वईद सुनाने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बग़ैर अज़न ख़दांदे अपनी कौम से अलग हो गए, बल्कि सियाक़ आयात और तफसीरी रिवायात से यही मालूम होता है कि जैसा तमाम साबिक़ इम्मतों के साथ मुआमला होता आया था कि जब उनकी उम्मत पर अजाब आने का फैसला कर लिया जाता तो अल्लाह ताला अपने रसूल और उनके साथियों को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दे देते थे, जैसा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या तसरीह कुरान में मज़कूरा है। इस तरह यहाँ भी जब अल्लाह का ये हुक्म हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़रिया उन लोगों को पहुँचा दिया गया कि 3 दिन के बाद अजाब आएगा, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इस जगह से निकल जाना ज़ाहिर यही है कि ये बाअमर ख़दांदे हुआ था। मुअर्रिख़ीन कहते हैं कि अलबत्ता हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से जो पैगम्बराना शान के एतबार से एक लग़ज़िश हुई और इस पर सूरत नबिया और सूरत साफ़ान की आयतों में अताब के अल्फाज आए और इसके नतीजा में मछली में रहने का वाक़या पेश आया, ये नहीं कि इन्होंने फरीज़ा रिसालत में कोताही कर दी थी, बल्कि वाक़या ये है कि ऊपर मुस्तनद तफसीरों के हवाले से लिखा गया है कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 3 दिन के बाद अजाब आने की वईद सुनाई और फिर बाज़न इलाही अपनी जगह को छोड़कर बाहर चले गए और बाद में ये साबित हवा के अजाब नहीं आया, तो अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये फ़िक्र लाहक हुई कि मैं अपने कौम में वापस जाऊंगा तो झूठा करार दिया जाऊंगा, और इस कौम का ये दस्तूर था कि जिसका झूठ साबित हो जाए इसको कत्ल कर दें, तो अब अपनी कौम की तरफ लौट कर जाने में जान का भी अंदेशा था। ऐसे वक्त बजज़ इसके कोई रास्ता ना था कि अब इस वतन से ही हिजरत कर जाएं, लेकिन सुन्नत नबिया की यह है कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत की इजाज़त ना आ जाए महज अपनी राय से हिजरत नहीं करते। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश ये थी कि अल्लाह की इजाज़त आने से पहले हिजरत करके किश्ती पर सवार हो गए, जो अगरचा अपनी ज़ात में कोई गुनाह नहीं था मगर सुन्नत नबिया से मुख्तलिफ था। अगर आयात कुरान के अल्फाज में गौर किया जाए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश फरीज़ा रिसालत की अदायगी में कोई कोताही नहीं है, बल्कि कौम के जुल्म व सितम से बचने के लिए हिजरत क़ब्ल अज़न के सिवा कुछ नहीं साबित होगी, जिसमें तबई खौफ की बिना पर कौम से जान बचाकर हिजरत करने को बतौर अताब से इस शदीद उन्वान से बयान फरमाया है। ये सब फ़राइज़ रिसालत की मुकम्मल अदायगी के बाद उस वक्त पेश आया जबकि अपने कौम में वापस जाने
से जान का खतरा लाहक हो गया। लिहाजा मफसरीन ये बात साबित करते हैं कि दावत रिसालत में कोई कोताही सबब अताब नहीं थी, बल्कि क़ब्ल अज़ इजाज़त हिजरत करना सबब अताब बना था। हम्द है और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई उसको अपनी तरफ से बना लाए। हाँ, ये अल्लाह का कलाम है जो किताबें इससे पहले की हैं उनकी तस्दीक करता है और इन्हीं किताबों की इसमें ते है, इसमें कुछ शक नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल हुआ है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने उसको अपनी तरफ से बना लिया है, और कह दो कि अगर बचे हो तो तुम भी इस तरह की एक सूरत बना लावा हमजा, और अल्लाह के सिवा जिनको तुम बलास को बल्ला भी लो। बाज़ अक़लियत के मुद्दई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में चले जाने पर एतराज़ात खड़े करते हैं। वो ये कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस किश्ती में सवार हुए वो अपनी गुंजाइश से ज़्यादा भरी हुई थी। कुरान अंदाज़ी किश्ती में हुई और कालबा उस वक्त हुई जब बहरी सफ़र के दौरान ये महसूस हुआ कि बोझ की ज़्यादती के सबब तमाम मुसाफिरों की जान खतरे में पड़ गई है। लिहाजा कुरा इस गर्ज के लिए डाला गया कि जिसका नाम कुरा में निकले इसे पानी में फेंक दिया जाए। कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही के नाम निकला और वो समंदर में फेंक दिए गए और एक मछली ने उनको निगल लिया। और फिर इस अबतला में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसलिए मुब्तला हुए कि वो अपने आका यानी खुदावंद कुद्दूस की इजाज़त के बगैर अपने मकाम मबूसीत से फरार हो गए थे। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजज़ी और इंकिसारी से दुआ मांगनी शुरू की कि नहीं है कोई मबूद मगर तो पाक है, तेरी ज़ात बेशक में कसूरवार हूँ। और फिर ये कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने कसूर का इतराफ़ कर लिया और एक बंदा मोमिन कामिल की तरह इसकी तस्बीह में लग गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से मछली ने उनको साहिल पर उगल दिया। और साहिल एक चटील मैदान था, इसमें कोई रोईदगी नून थी और न कोई ऐसी चीज़ जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर साया करती, न वहाँ ग़िज़ा का कोई सामान मौजूद था। इस पर इतराज़ करते हुए अक़लियत के दावेदार ये कहते हैं कि मछली के पेट में जाकर किसी इंसान का जिंदा निकल आना नामुमकिन है। लेकिन जब हम आलमी हालात व तारीख़ का जायज़ा लेते हैं तो 19वीं सदी के अवाखिर में इन नाम निहाद अक़लियत पसंदों के मुंह पर एक तमांचा मार कर रख दिया। 19वीं सदी के आखिर में अक़लियत के गढ़ इंग्लिस्तान के साहिल से करीब एक वाक़या पेश आया जो अक़लियत पसंदों के दावा की तरदीद करता है। अगस्त 1891 में एक जहाज़ नाम जिसका स्टार ऑफ दी ईस्ट था, इस पर कुछ मछेरे व्हेल मछली के शिकार के लिए गहरे समंदर में चले गए। वहां इन्होंने एक बहुत बड़ी मछली को जो 20 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी और 100 टन वजनी थी को सख्त जख्मी कर दिया। मगर इससे जंग करते हुए और इसके साथ मठ भीड़ में उनका एक साथी नाम जिसका जेम्स बाले था, इन मछलियों के देखते ही देखते उनकी मौजूदगी और उनकी आंखों के सामने इस व्हेल मछली ने निगल लिया। दूसरे रोज उसी जहाज के इन मछलियों को वो व्हेल मछली मरी हुई मिल गई। इन्होंने बड़ी मुश्किल से इसे जहाज पर चढ़ाया और फिर तवील जद्दोजहद के बाद जब इसका पीठ चाक किया तो उनका साथी जेम्स बामिले उसके अंदर से जिंदा बरामद हो गया था। ये शख्स मछली के पीमा के पेट में पूरे 60 घंटे रहा। अब गौर करने की बात यह है कि अगर मामूली हालात में आम और मामूली आदमी फितरी तौर पर इस मछली के पेट में 60 घंटे रह सकता है और ऐसा रहना मुमकिन है, तो गैर मामूली हालात में जब अल्लाह मुजज़ाना अंदाज में किसी बंदे को मछली के पेट में रखे तो फिर ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है। फिर कमाल की बात यह है कि जब मछली ने आपको साहिल पर उगल दिया तो खुदावंद कुद्दूस ने अपने बंदे की हिफाजत का भी खूब एहतिमाम किया और कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि हमने अपने बंदे के लिए शजरा यकीन का एहतिमाम किया। यकीन अरबी ज़बान में ऐसे दरख्त को कहते हैं जो किसी तने पर खड़ा नहीं होता, मसलन बेल की शक्ल में फैलता है जैसे कद्दू, तरबूज, वावकड़ी वगैरह। बहरहाल वहाँ कोई ऐसी बेल मुजज़ाना तौर पर खुदावंद कुद्दूस ने पैदा कर दी थी जिसके पत्ते हज़रत यूनुस पर साया करते और जिसके फल उन के लिए बैक वक्त ग़िज़ा का काम भी देते और पानी का भी। और फिर जब आप भले चुंगे हो गए तो खुदावंद कुद्दूस ने फरमाया कि हमने फिर उन लोगों की तरफ भेजवाया जो 1 लाख या इससे ज़ायद थे और वो ईमान लाए, और हमने एक ख़ास वक्त तक इन्हें बाकी रखा। 1 लाख या इससे ज़ायद कहने का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला को उनकी तादाद में शक था, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई उनकी बस्ती को देखता तो ये अंदाज़ा करता कि
इस शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा ही होगी, कम ना होगी। अगलब ये है कि ये वही बस्ती थी जिसको छोड़कर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भागे थे। उनके जाने के बाद अजाब आता देखकर जो ईमान इस बस्ती के लोग ले आए थे, इसकी हैसियत सिर्फ तो बकी थी, जिसे कबूल करके अजाब इन पर से हटा दिया गया था। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा उनकी तरफ भेजे गए ताकि वो नबी पर ईमान लाकर अल्लाह की खुशी हासिल कर लीं। इस किस्सा से मुताल्लिक मुअर्रिखीन ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अपनी कौम से निकल कर चले जाने पर मुख्तलिफ अंदाज में ख्याल आराई की है। मशहूर मफसर क़तादा कहते हैं, दाल कोई बस्ती ऐसी नहीं गुजरी जो कफर कर चुकी हो और अजाब आ जाने के बाद ईमान लाई हो और फिर उसे छोड़ दिया गया हो। इससे सिर्फ कौम यूनुस अलैहिस्सलाम मुस्तस्ना है। इन्होंने जब अपने नबी को तलाश किया और ना पाया और महसूस किया कि अजाब करीब आ गया है, तो अल्लाह ने उनके दिलों में तौबा डाल दी। अल्लामा अलूसी फरमाते हैं, इस कौम का किस्सा यह है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मुवस्सिल के इलाके में नैनवा के लोगों की तरफ भेजे गए थे। ये काफिर व मशरिक लोग थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह वाहिद ला शरीक पर ईमान लाने और बुतों की पर सतश छोड़ने की दावत दी। इन्होंने इनकार किया और झटलाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनको खबर दी कि तीसरे दिन इन पर अजाब आएगा और तीसरा दिन आने से पहले आधी रात को वो बस्ती से निकल गए। फिर दिन के वक्त जब अजाब इस कौम के सरों पर आन पहुंचा तो इन्हें यकीन हो गया कि सब हलाक हो जाएंगे। तो इन्होंने अपने नबी को तलाश किया मगर ना पाया। आखिर वो सब अपने बच्चों और जानवरों को ले कर सहरा में निकल आए और ईमान व तौबा का इजहार किया। फिर अल्लाह ने इन पर रहम किया और उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लामा अलूए मजीद फरमाते हैं, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से नाराज होकर निकल जाना हिजरत का फेल था, पर इन्हें इसका हुक्म नहीं दिया गया था। और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी दुआ में कहा, मैं कसूरवार था कि नबिया के तरीक़ा के खिलाफ हुक्म आने से पहले हिजरत करने में जल्दी कर बैठा। ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से अपने कसूर का इतराफ और तौबा का इजहार था ताकि अल्लाह उनकी इस मुसीबत को दूर फरमा दे। मौलाना अशरफ अली थानवी इस सिलसिला में कहते हैं कि वो अपनी कौम पर जबकि वो ईमान ना लाई खफा होकर चल दिए और कौम पर से अजाब टल जाने के बाद भी खुद वापस ना आए और इस सफ़र के लिए हुक्म का इंतज़ार ना किया। इस सिलसिला में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी फरमाते हैं, कौम की हरकत से खफा होकर गुस्सा से भरे हुए शहर से निकल गए, हुक्म इलाही का इंतज़ार ना किया और वादा कर गए कि 3 दिन के बाद तुम पर अजाब आएगा और फिर अपनी खता का इतराफ़ किया कि बेशक मैंने जल्दी की कि तेरे हुक्म का इंतज़ार किए बगैर बस्ती वालों को छोड़कर निकल खड़ा हुआ। इमाम राजी लिखते हैं कि हजरत यूनुस का कसूर ये था कि अल्लाह ताला ने उनकी इस कौम को जिसने इन्हें झटलाया था हलाक करने का वादा फरमाया। ये समझे काफ है ये अजाब ला महला नाजिल होने वाला है, इसलिए इन्होंने सब्र ना किया और कौम को दावत देने का काम छोड़कर निकल गए। हालांकि उन पर वाजिब था कि उन लोगों को हलाक ना करे, दावत का काम बराबर जारी रखते। दूसरे इस अमर का इम्कान बाकी था कि अल्लाह मुफस्सिरीन ये भी लिखते हैं कि कुरान में ऐसे वाक़यात बयान करने का मकसद ये भी होता है कि ये लोगों को जहन नशीन कराया जाए कि सारे नबी महज बंदे और इंसान ही थे, अलूहीद का उनमें शाबा तक ना था, दूसरों को औलाद बख्शने वाले ना थे, बल्कि खुद अल्लाह के आगे औलाद के लिए हाथ फैलाने वाले थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए किया गया कि एक नबी औलुल अज़म होने के बावजूद जब उनसे कसूर सरजद हुआ तो इन्हें पकड़ लिया गया, और जब वो अपने रब के आगे झुक गए तो उन पर फजल भी ऐसा किया गया कि मछली के पेट से जिंदा निकाल लिए गए। उसी तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या भी जिक्र किया गया कि नबी मुबतला है, मुसीबत होना कोई निराली बात नहीं है, और जब नबी भी किसी मुसीबत में मुब्तला होता है तो अल्लाह ही के आगे शिफा के लिए हाथ फैलाता है और इससे मदद और इयानत तलब करता है। वो दूसरों को शफा देने वाला नहीं, अल्लाह से शिफा मांगने वाला होता है। फिर उन सब बातों के साथ एक ये हकीकत भी जहन नशीन करनी मकसूद है कि ये सारे अनबिया तौहीद के कायल थे और अपनी हाजात एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने ना ले जाते थे। दूसरी तरफ ये भी जताना मकसूद है कि अल्लाह ताला हमेशा गैर मामूली तौर पर अपने नबियों की मदद करता रहा है। आगाज में ख्वाह कैसी ही आजमाइशों से उनको साबिका पेश आया हो, मगर आखिरकार उनकी दुआएं मुजिज़ाना शान के
साथ पूरी हुई। महक़क़ीन ये भी लिखते हैं कि खुदावंद कुद्दूस का इरशाद है, जिस तरह हमने यूनुस को गम और मुसीबत से निजात दी, उसी तरह हम मुमिनीन के साथ यही मुआमला करते हैं जब वो सद्क़ व इखलास के साथ हमारी तरह मुतवज्जह हों और हमसे पनाह मांगें। हदीस में है कि हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि यूनुस की वो दुआ जो इन्होंने बतन माही के अंदर की थी, यानी तेरे सिवा कोई इलाह नहीं तो पाक है और मैं ही जालिमों में से हूँ। जो मुसलमान अपने किसी मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करेगा, मालिक अल-क़दस उसे कबूल फरमाएंगे। इसके अलावा मालिक अल-क़ुद्दूस ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सूरत यूनुस, सूरत अंबिया, सूरत साफ़ान और सूरत अल-क़लम में जिक्र फरमाया। कहीं उनका असल नाम ले कर जिक्र फरमाया, कहीं साहब अलहुद के अलक़ाब से जिक्र किया गया है। नून और हौद के मानी मछली के हैं। साहब अलहुद का तर्जुमा है पिछली वाला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बतक़दीर इलाही चंद रोज़ बतन माही में रहने का वाक़या पेश आया था, लिहाजा इसकी मुनासिबत से इन्हें साहब अलहुद भी कहा जाने लगा। और फिर कुरान मुक़द्दस में मछली के पीठ से निजात के बाद जो फरमाया कि हमने उनको 1 लाख या इससे भी ज़्यादा आदमियों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा, तो इससे मुफ़स्सिरीन और उलमा जो मुख्तलिफ आरा का इजहार करते हैं, ये जुमला चूंकि मछली के वाक़या के बाद पेश आया, इसलिए इससे बाज़ मुफ़स्सिरीन ने ये नतीजा निकाला है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बासत इस वाक़या के बाद हुई। और अल्लामा बगवी ने यहाँ तक फरमा दिया कि इस आयत में नैनवा की तरफ बासत का जिक्र नहीं है, बल्कि मछली के वाक़या के बाद इन्हें एक दूसरी उम्मत की तरफ भेजा गया जिसकी तादाद 1 लाख से ज़ायद थी। लेकिन मुफ़स्सिरीन का दूसरा गिरोह कहता है कि कुरान करीम और रिवायात से अज़ाब से बचा लिया, लेकिन कौम यूनुस की ये हालत हमेशा न रही और एक ज़माना दहाया कि इन्होंने फिर जुल्म व सितम और कफर व शरक को अपना लिया और गुज़श्ता सरकश कौमों की तरह समझाने के बावजूद भी राह रास्त पर न आए, तब अल्लाह ताला ने भी उनके साथ वही किया जो हुक्म इलाही के मुताबिक ऐसी कौमों के साथ किया जाता रहा है। ए पैगंबर, कह दो कि लोगों, अगर तुमको मेरे दीन में किसी तरह का शक हो तो सुन रखो कि जिन लोगों की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, उनकी इबादत नहीं करता, बल्कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी रूहें कब्ज़ा कर लेता है। और मुझको यही हुक्म हुआ है कि ईमान लाने वालों में हूँ, और ये कि ए मोहम्मद सबसे यकसू होकर दीन इस्लाम की पैरवी किए जाओ और मुशरिकों में हरगिज ना होना। तौरीत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को यूना के नाम से पुकारा गया और तौरीत के अंदर जो आपके वाक़यात दिए गए हैं वो किसी हद तक कुरान मजीद से मुताक़त रखते हैं, लेकिन कुछ को तौरीत के बार बार तब व ख़त्म होने और बार बार अपनी तरफ से लिख लेने की बिना पर इनमें काफ़ी हद तक तब्दीली और फ़र्क डाल दिया गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से मुतालिक तो रेत कहती है कि खुदावंद का कलाम यूना बिन मती पर नाज़ल हवा के इस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, चूंकि उसकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस के इलाके को भागा और याफा में पहुंचा और वहां से उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर इसमें सवार हुआ था कि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहल जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समंदर में बड़ी आंधी भेजी, समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। तब मला हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थीं वो समंदर में डाल दें ताकि इसे हल्का करे। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सोया रहा। तब ना खुदा इसके पास जाकर कहने लगे, तो पड़ा सो रहा है, उठ अपने महबूब को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हों। और इन्होंने आपस में कहा कि आओ हम कुरा डाल कर देखेंगे, आफत हम पर किसी बात से आई है। चुनांचे इन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम निकला। तब इन्होंने इससे कहा कि तो हमको बता कि ये आफत हम पर किसी सबब से आई है, तेरा वतन कहाँ है और तो किसी कौम का है। उसने इनसे कहा, मैं अबरानी हूँ और मालिक आसमान और खुदाए बहर वाव बर के खालिक से डरता हूँ। तब वो खौफजदा होकर इससे कहने लगे, तूने ये किया क्योंकि उनको मालूम था कि मालिक अल-कुद्दूस के हुजूर से भागा है, इसलिए कि इसने खुदान से कहा था। तब इन्होंने इससे पूछा, हम तेरे साथ किया करें कि समंदर हमारे लिए साकिन हो जाए, क्योंकि समंदर ज्यादा तूफानी होता जा रहा है। तब इसने इनसे कहा कि मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है।
तो इन मुलाहों ने बड़ी कोशिश करके मेहनत की कि किनारे पहुंची, लेकिन ना पहुंच सके, चूंकि समंदर उनके खिलाफ और भी ज्यादा मुअज्जम होता जा रहा था। तब इन्होंने मालिक अल कुद्दूस के हुजूर गुड़ गड़ा कर कहा कि खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हूं, और तो खून नाहक को हमारी गर्दन पर ना डाले। खुदा तूने जो चाहा सो किया। और इन्होंने यूना को उठाकर समंदर में फेंक दिया। समंदर का तलातिम मौकूफ हो गया। तब वो खुदा से बहुत डर गए और इन्होंने खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजारी और नजरें मानी, लेकिन खुदा ने एक बड़ी पिछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए। यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। तब यूना ने पिछली के पीठ से अपने खुदा से दुआ की। मैंने मुसीबत में खुदा से दुआ की कि इसने मेरी सुनी, तूने पाताल की तह से रिहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी, तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझसे गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर तेरी मुक़द्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समंदर मेरे चारों तरफ था, बहरी नबातात मेरे सर पर लेट गईं, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। ए खुदा, तूने मेरी जान मुसीबत से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने तुझको याद किया और मेरी वो दुआ तेरे मुक़द्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफ़क़त से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हूँ तेरे हुजूर, कुर्बानी गुजारूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। निजात खुदा की तरफ से है। खुदा ने मछली को हुक्म दिया और इसने यूना को खुश्की पर उगल दिया। और खुदा का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजल हुआ, उठ इस बड़े शहर नैनवा को जा, वहाँ इस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदा के हुक्म के मुताबिक उठकर नैनवा गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। इसकी मुसाफत 3 दिन की थी। यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन इसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने ख्वाब पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की और अदनी आला सब ने टाटोड़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास उतार कर टाटोड़ कर राख पर बैठ गया। बादशाह और इसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया, इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला और कुछ ना चखे और ना खाए, लेकिन इंसान और हैवान टाटोड़े हुए हूँ और खुदा के हुजूर गिरिया गुजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपने इरादे बदले और अपने कहर शदीद से बाज आए और हम बर्बाद ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी बुरी रविश से बाज आए हैं, तो इस अजाब से जो उन पर नाजल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजल ना किया। लेकिन यूना इससे निहायत ना खुश हवा नाराज हुआ और उसने खुदा से यूं दुआ की, ए खुदा, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था, किया मैं ये ना जानता था कि तो रहीम वाओ करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, अजाब नाजल करने से बाज रहता है। अब ए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदा ने फरमाया, किया तो ऐसा नाराज है। और यूना शहर से बाहर मशरिक की जानिब जा बैठा और वहां अपने लिए छप्पर बनाकर इसके साए में बैठा रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। तब खुदावंद ने कदू की बेल उगाई और इसे यूना के ऊपर फैला दिया कि इसके सर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे। यूना इस बेल के सबब से बेपनाह खुश हुआ। और दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा जिसने इस बेल को काट डाला और वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरिक से लू चलाई। आफताब की गर्मी ने यूता के सर पर असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का आरज़ूमंद होकर रोने लगा, मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। और खुदा ने यूना से फरमाया कि तो इस बेल के सबब ऐसा नाराज है। इसने कहा, मैं यहाँ तक नाराज हूँ कि मर जाना चाहता हूँ। तब खुदावंद ने फरमाया, तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कोई मेहनत की और ना उसे लगाया, जो एक ही रात में आगी और एक ही रात में सूख गई। और किया मुझे लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं, जिसमें 1,00,000 में 1,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जो अपने दाएं और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार मवेशी हैं। मफसरीन ये भी तहरीर करते हैं कि बाइबल में यूना के नाम से जो मुख्तसर सा सहफ़ा है, इसमें कुछ तफसील तो मिलती है मगर वो काबिल इतिमाद नहीं है, क्योंकि अव्वल तो वो
आसमानी सहफ़ा है नहीं ना खुद हजरत यूनुस का लिखा हुआ है, बल्कि उनके 400-500 बरस बाद किसी नामालूम शख्स ने इसे तारीख यूनुस के तौर पर लिखकर 100 मजमुआ कुतुब मुक़द्दसा में शामिल कर दिया है। दूसरे इसमें बाज़ सरी महमलात भी पाए जाते हैं जो मानने के काबिल नहीं हैं, ताहम कुरान के अशारात और सहफ़ा यूनुस की तफसील पर गौर करने से वही बात सही मालूम होती है जो मुफस्सिरीन कुरान ने बयान की है कि हजरत यूनुस के उनके अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह ताली की इजाज़त के बगैर अपनी जगह छोड़कर चले गए थे। इसलिए जब आसार अजाब देखकर आशूरियों ने तो इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह ताला ने इन्हें मुआफ़ कर दिया। कुरान मजीद में खुदाई दस्तूर के जो उसूल और कुल्लियात बयान किए गए हैं, उनमें एक मुस्तकिल दफ़ा यह है कि अल्लाह ताला किसी कौम को इस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक इस पर अपनी हजरत पूरी नहीं कर लेता। पस जब नबी ने इस कौम की मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी न रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले बतौर खुद वो हजरत कर गया, अल्लाह ताला के इंसाफ ने इस कौम को अजाब देना गवारा ना किया, क्योंकि इस पर तमाम हजरत के कानूनी शराइत पूरी नहीं होती थी। इसके साथ ही मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि यकीन के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि यह कौम अपनी किन खास वजूहात की बिना पर खुदा के इस कानून से मुस्तस्ना की गई कि अजाब का फैसला हो जाने के बाद किसी का ईमान इसके लिए नाफा नहीं होता। हजरत यूनुस से मुतालिक शाह अबद अल कादिर फरमाते हैं कि हजरत यूनुस की वफात उसी शहर में हुई जिसकी जानिब वो मबऊस हुए थे, यानी नैनवा में, और वहीं उनकी कब्र थी। और अब्दुल वहाब निजार कहते हैं कि फ़लस्तीन के इलाके में जो मशहूर शहर खलील है, उसके करीब ही एक बस्ती हलहुल के नाम से मशहूर है। इसमें एक कब्र है जिसको हजरत यूनुस की कब्र बताया जाता है, और इस कब्र के करीब दूसरी कब्र है, और इसके मुतालिक कहा जाता है कि वो हजरत यूनुस के वालिद मती की कब्र है। लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन के मुताबिक सही यही है कि हजरत यूनुस नैनवा ही में फौत हुए और वहीं दफन हुए, और तमाम मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन इस पर मुत्तफिक हैं कि हजरत यूनुस दोबारा नैनो ऑक्स तशरीफ ले गए और इन्होंने अपनी कौम के अंदर ही जिंदगी गुजारी। लिहाजा करीब क़ियास यही मालूम होता है कि उनका इंतकाल नैनवा ही में हुआ और वहीं उनकी कब्र होगी जो नैनवा की तबाही के बाद ना मालूम हो गई, और बाद में खुश एतकादी के नुक्ता नज़र से हलमूल के गैर मारूफ दो कब्रों को हजरत यूनुस और उनके वालिद मती की कब्र बना दिया गया। आज भी बाज़ मुशाहिर औलिया अल्लाह के नाम से एक बुजुर्ग की मुतअद्दिद मकामात पर कब्रें मौजूद हैं, और ऐसा तो कसरत से है कि गैर मालूम बुजुर्गों के नाम से बहुत सी कब्रों को गलत मकसूब करके अपनी दुनियावी अगराज को पूरा किया जाता है। अहादीस सहीहा में हुजूर ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करते हुए उनकी अज़मत और फजीलत का खुसूसियत के साथ इजहार फरमाया। चुनांचे बुखारी में मनकूल है, हुजूर ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स हरगिज़ ये ना कहे कि मैं बेहतर हूँ, यूनुस बन मती है। हजरत अबू हरीरा से मनकूल है कि एक मर्तबा एक यहूदी सामान फरोख्त कर रहा था कि किसी शख्स ने कुछ खरीद कर जो कीमत देना चाहिए वो इसकी मर्जी के खिलाफ थी। वो कहने लगा, कसम बखदा जिसने मूसा को अफजल बशर बनाया, मैं इस कीमत पर अपनी चीज को फरोख्त नहीं करूंगा। एक अंसारी ने यह सुना तो गुस्से में यहूदी के एक तमांचा रसीद कर दिया और कहा, तो ऐसी बात कहता है, हालांकि हमारे दरमियान हमारे नबी मौजूद हैं। यहूदी फौर और बार रिसालत में हाजिर हुआ और फरियाद करने लगा, ऐ अब्बू अल कासिम, जबकि मैं आपके अहद और जिम्मा में हूँ तो इस अंसारी ने मेरे मुंह पर तमांचा किस लिए मारा। हुजूर ने अंसारी से वजह दरियाफ्त फरमाई, और जब अंसारी ने वाक़या सुनाया तो चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया और फरमाया, अनबिया किराम को एक दूसरे पर फजीलत ना दो, इसलिए कि जब अव्वल सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन व आसमान के दरमियान जो भी जानदार हैं वो सब बेहोश हो जाएंगे, मगर जिनको खुदा मुस्तस्ना कर दे। इसके बाद दूसरा वर्ग फूंका जाएगा तो सबसे पहले जो शख्स होश में आएगा वो मैं हूँ सूर गा, मगर मैं जब गशी से बेदार होनेगा तो देखूंगा कि मूसा अरश के सहारे खड़े हैं। अब मैं नहीं कह सकता कि आया कि उनकी गशी का मामला तौर के वाक़ये में मंसूब हो गया कि वो गशी से महफूज रहे, या वो मुझसे भी पहले होश में आ गए। और मैं नहीं कहता कि कोई नबी भी यूनुस बिन मती से अफजल है। इन रिवायात में खुसूसियत के साथ हजरत यूनुस का जो जिक्र आया है, इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है। ये इसलिए कि जो शख्स हजरत यूनुस के
कोई भी तनकीस का पहलू हरगिज पैदा न होने पाए, लिहाजा ये ज़राए के पेश नज़र आपने उनकी अज़मत और शान को इस तरह नुमायां करना ज़रूरी समझा। मगर इस मकाम पर यह मसला ज़रूर हल तलब आ जाता है कि दूसरी हदीस में हज़रत मूसा की फजीलत से मुतालिक आपने जो तफसील फरमाई और फिर अनबिया के माबैन तफसील को मना फरमा दिया, तो इसकी हकीकत क्या है? मसला ज़ेर बहस को ज़्यादा नुमायां करने के लिए यूँ समझना चाहे कि एक जानिब कुरान मजीद में इरशाद है कि ये रसूल हैं और हमने इनसे बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, यानी अल्लाह ताला ने नबिया और रसूल में बाहम अफजल और मफजूल की निस्बत कायम की है और बाहम एक वाओ दीगर फजीलत अता फरमाई है। नीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं बगैर किसी फ़ख्र वाओ मबाहत के कहता हूँ कि मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ। दूसरी जानिब आप फिर इरशाद फरमा रहे हैं कि नबिया के दरमियान अफजल वाओ मफजूल के दर्जात कायम कुर्द और ना एक को दूसरे पर फजीलत दो और ना मुझको यूनुस बिन मती और मूसा पर फजीलत दो, तो उन्नसो कुरानी और हदीस के दरमियान किसी तरह मुताक़त हो सकती है। इस मसले के हल में मुहद्दिसीन और मुसारहीन हदीस से मुतअद्दिद अक़वाल मनक़ूल हैं। मसलन उन दोनों मज़ामीन के दरमियान ततबीक़ की शक्ल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद कुरानी जिसमें नबिया के बाहम दीगर फजीलत या ज़ात अक़दस को किसी नबी पर फजीलत की मुमानियात मज़कूर है, उस ज़माने के इरशाद हैं जब सूरह बक़ीर की इस आयत का नज़ूल नहीं हुआ था और को फ़िज़ाइल नबिया न आ था। सली नबिया खुसूसन तमाम नबिया पर अपनी फजीलत का हनूद इल्म हवा, लेकिन ये जवाब या मसला का हल बहुत कमज़ोर बल्कि साकत एतबार है, इसलिए कि यहूदी का ये वाक़या या हज़रत यूनुस की फजीलत से मुतालिक रिवायात का सिलसिला उस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है जो मदनी ज़िंदगी के आखिरी साल कहलाते हैं और उनसे क़ब्ल नबिया के माबैन फ़िज़ाइल के बहुत से वाक़यात खुद ज़ात अक़दस से मनक़ूल हो चुके हैं। दूसरा हल ये पेश किया गया कि अगरचा इन रिवायात में बाज़ तरीक़ा हाय सनद में फ़जीलत नबिया से मुतालिक आम अल्फाज मनक़ूल हैं, यानी ला तफ़ज़लु बैन अल अंबिया, मगर वाक़िफ़ियत इस इरशाद गरामी का मकसद सिर्फ ज़ात अक़दस है, जैसा कि यहूदी वाक़या और हज़रत यूनुस से मुतालिक रिवायात से ज़ाहिर होता है। और अगर आप जानते हैं कि खुदा ताला ने आपको तमाम औलाद आदम पर फजीलत अता फरमाई है, ताहम आपने तवाज़ो और इनकिसारी के तौर पर यह इरशाद फरमाया है, मगर ये जवाब भी कवी नहीं है, इसलिए कि आपने जब मज़कूरा बाला जुमला में मसला को आम जिक्र फरमाया है तो बेदलील इसको फ़कत ज़ात अक़दस के साथ मखसूस कर देने के कोई मानी नहीं। तीसरा जवाब ये दिया जाता है कि जिन रिवायात में नबिया के बाहम एक दूसरे पर फजीलत का इनकार किया गया है, इससे नफ्स नबूवत की फजीलत मुराद है, खसाइस और सिफात के लिहाज से अफजल और मफजूल होने का इनकार नहीं, जैसा कि सूरह बकरा ही में मोमिन की शान ये बयान की गई है कि हम किसी भी नबी और रसूल के दरमियान कोई फ़र्क नहीं समझते और ये नहीं करते कि खुदा के बचे नबी में से एक को तस्लीम दूसरे को इनकार करें। ये जवाब उस वक्त दिलचस्प हो सकता है जबकि आपका इरशाद गरामी ऐसे वाक़े से मुतालिक हो जिसमें किसी बचे पैगंबर के नबी के मानने या ना मानने पर क़ज़िया पेश आता हो, लेकिन यहूदी के वाक़े में तो नफीस नबूवत की बहस नहीं थी बल्कि हुजूर और हज़रत मूसा के अफजल और मफजूल होने की बहस थी। लिहाजा इस मसले का बेहतरीन हल ये है कि बिलाशुबा नबिया और रसूल के दरमियान दर्जात फ़िज़ाइल मौजूद हैं। फिर मज़कूरा बाला रिवायात में आपके जो नबिया के दरमियान फजीलत देने की मुमानत मज़कूर है, इसका मतलब यह है कि किसी नबी को किसी दूसरे नबी पर इस तरह की फजीलत देना सख्त ममनू है कि जिससे मफजूल नबी की तनकीस लाजिम आती हो, यानी ये नहीं होना चाहे कि किसी पैगंबर की मोहब्बत के जोश में दूसरे अनबिया का मुकाबला करते हुए ऐसी मदहत और मुनक़बत करे कि जिससे दूसरे पैगंबर की शान में नुक्स का पहला लिखता हूँ। नीज़ ऐसे मौका पर फजीलत की बहस की मुमानत की गई है जब ये मसला मजाया और मुनाजरा की शक्ल इख्तियार करे, क्योंकि ऐसी सूरत में एहतियात के बावजूद इंसान बेकाबू होकर दूसरे पैगंबर के मुतालिक ऐसी बातें कह जाएगा जो उनकी तौहीन या तनकीस का बायस होती या और नतीजा में ईमान की जगह कफर लाजिम आती हो। चुनांचे इस वाक़या में आपने ये इरशाद फरमाया था वो इस कसम के मजादिला का मौका था। बाकी नबिया के दरमियान अल्लाह ताला ने बाज़ खसाइस के एतबार से जो फ़र्क मरातिब कायम किया है और जिसके मुतालिक खुद फरमाया है
کہ یہ پیغمبر ہیں اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی تو یہ امر محبوب ہے تو کہ ممنوع۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر اس مسئلے سے متعلق حافظ ابن البحر نے جو بحث نقل کی ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت فرمائی ہے تو علماء اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسی فضیلت ممنوع ہے جو اپنی رائے سے اختراع کی جائے، وہ فضیلت منع نہیں ہے، دلیل شرعی پر قائم ہو، یا وہ منع ہے جو اس طرح ادا کی جائے کہ جس نبی پر فضیلت دی جا رہی ہو اس کی شان میں نقص پیدا کرتی ہو یا خصومت اور جھگڑے کا باعث بنتی ہو، یا ایسی فضیلت دینے کی ممانعت ہے جو ایک نبی کے اندر اس طرح تمام فضائل کو جمع کرتی ہو کہ اس سے یہ لازم آ جائے کہ دوسرے نبی کو کوئی فضیلت حاصل ہی نہیں ہے۔ مگر ایسی فضیلت کی ممانعت مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ امام کو مؤذن پر فضیلت ہے تو اس سے مؤذن کی شان کا نقص لازم نہیں آتا، جائز ہے۔ ایک قول ضعیف یہ بھی ہے کہ اس ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ نفس نبوت میں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، جیسا کہ قرآن مقدس نے فرمایا کہ رسولوں میں سے ایک دوسرے میں فرق نہ کرو، لیکن بعض ذات گرامی کو بعض پر ان کی ذاتی خصوصیات پر فضیلت دینا ممنوع نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور محقق جن کا نام علیمی ہے کہتے ہیں جو احادیث انبیاء کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت کرتی ہے وہ ایسے مواقع کے متعلق ہے جبکہ اہل کتاب سے انبیاء کے متعلق مجادلہ اور جھگڑا ہو رہا ہو، یا مسلمان اور عیسائی مثلاً اپنے نبی کو دوسرے پر ترجیح دے رہے ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں جب دو مذہبوں کے درمیان بحث آ جاتی ہو تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسی بات زبان سے نہ نکلے جو دوسرے مذہب کے نبی کی شان میں توہین کا باعث ہو اور کفر کا سبب بنے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے تو واجب ہے کہ مذاہب کے تمام بچے انبیاء کو اپنانی سمجھیں، لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ انبیاء کے باہم فضائل کی بحث سے ایک دوسرے کی حقیقی ترجیح کو ثابت کرنا ہو تو یہ منع نہیں ہے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہم پر ذلت چھا جائے گی، اور کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہم کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ حضرت یونس کے واقعہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حسب ذیل حقائق وہ اول قوموں کی رشد و ہدایت کے متعلق یہ سنت اللہ ہے کہ جب وہ نبی کی دعوت منہ موڑ کر انکار اور نفی پر اصرار کرنے لگتی اور ظلم پیشی اور قلم شعری کو اصول بنا لیتی ہیں اور نبی مایوس ہو کر ان کو عذاب کی اطلاع دیتا ہے تو امت کے لیے صرف دو راہیں باقی رہ جاتی ہیں، یا عذاب آنے سے قبل ایمان لے آئے اور عذاب سے محفوظ ہو جائے، یا عذاب الہی کا شکار ہو جائے، اور یہ ناممکن ہے کہ نبی کی اطلاع عذاب کے بعد وہ عذاب سے قبل ایمان بھی نہ لائیں اور عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ قوم نوح، قوم صالح، لوط، عاد اور سمود وغیرہ ان سب امت و اقوام سابقہ کا عظیم الشان تمدن، بلند اور اعلیٰ تہذیب، پہلمان، طاقت، قوت، اور پھر عذاب الہی سے ایک بیگ فنا ہو کر بے نام و نشان ہو جانے کی تاریخ اس حقیقت کو آشکارا کرتی ہے۔ دویم، گزشتہ اقوام میں سے قوم یونس کی ایک مثال ایسی ہے کہ جس نے عذاب آنے سے قبل ایمان کو قبول کر لیا اور خدا کی کچی مطیع اور فرما بردار ہو کر عذاب الہی سے محفوظ ہو گئی۔ کاش کے بعد میں آنے والی نسلیں اور قومیں بھی قوم یونس کے قدم پر چل کر اس طرح عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتی، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ سوئم انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عوام اور خواص دونوں سے جدا رہتا ہے، اور رہنا بھی چاہے، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا کے ساتھ مشرف مخاطبت و مکالمت رکھتے ہیں، لہذا احکام الہی کی وہ ذمہ داری جو ان سے وابستہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتی، بس ان کا فرض ہے کہ جو کام بھی سر انجام دیں وہی الہی کی روشنی میں ہونا چاہے، خصوصاً تبلیغ دین اور پیغام حق سے متعلق تمام معاملات میں وہی الہی کے علم یقین ہی پر ان کا معاملہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی کام میں اجلت کر گزرتے ہیں یا بغیر انتظار وہی کے کسی قول اور عمل پر اقدام کر جاتے ہیں تو وہ خواہ وہ بات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، ان سے اللہ تعالیٰ بہت سخت مواخذہ کرتا اور ان کی اس صورتحال کے لیے ایسی سخت تبیر روا رکھتا ہے کہ سننے والا یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ حقیقتاً انہوں نے کوئی عظیم جرم کیا ہے، مگر ساتھ ہی اس کی اعانت بھی ان کے شامل حال رہتی ہے،
और वो फौरन मुतनब्बे होकर इतिराफ नदामत के साथ अफू तकसीर के लिए दसत बरदार हो जाते हैं और अनाबत वाव तौबा को वसीला कार बना लेते हैं, जो बहुत जल्द खुदा के यहाँ मकबूल हो जाती है और उनकी इज्जत व एहतराम के ज्यादा होने का बायस बन जाती है। कुरान मजीद के इस रूह बयान में ये हकीकत बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। जो इस हकीकत से ना आशना होता, इसके लिए इस कसम के मौक़े सख्त खलजान का मूजिब बनते हैं, क्योंकि एक तरफ वो देखता है कि अल्लाह ताली की एक हस्ती को नबी और रसूल कहकर इसकी मदहत कर रहा है, और दूसरी जानिब ये नजर आता है कि गोया वो बहुत ही बड़े जुर्म का मुर्तकिब है, तो वो हैरान और मुस्तरिब होकर भी रवि में पड़ जाता है या वसूसात के तारीक मैदान में घर जाता है। इसलिए बस जरूरी है कि अनबिया के वक़ाए व अखबार में हमेशा इस हकीकत को पेश नज़र रखा जाए, ताकि सिरात मुस्तकीम से पाँव न डगमगाएं। चहारम इस्लाम की तालीम यह है कि खुदा के बच्चे नबी इस्लाम के अपने नबी हैं, ख्वाह वो किसी दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन पर उसी तरह ईमान लाना ज़रूरी है जिस तरह हुजूर पर ईमान लाना। लिहाजा इसका यकीन रखते हुए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबिया और रसूल के सरदार और अफजल अल बशर हैं, किसी नबी के मुकाबले में आपको ऐसी दहत और मुनक़बत सख्त ममनू है जिससे किसी नबी की तनक़ीस होती हो, जैसा कि आमतौर पर मीलाद की मरूजा मजालिस में इस अहम हकीकत से नाआशना मेलादाल खानों के अशार में ये ममनू तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। हज़रत यूनुस और उनके बाद नैनवा के आशूरियों की तहजीब और तरक्की अपने उरूज पर पहुंच गई थी। आशूरी तहजीब से बाबलियों और शामियों ने बेशुमार अनासिर लिए, मादी भी, मजहबी भी और लिसानी भी। ये अनासिर अंजाम कार यूनानियों के जरिए मगरबी यूरोप तक पहुंचा दिए गए। हिल जो ज़राअत के लिए एक बेहतरीन औजार ख्याल किया जाता है, वो उन आशूरियों की ईजाद थी, और उनकी ये ईजाद पूरे मशरक़ करीब में फैल गई। हिल चलाने से नेजर ज़मीन की पैदावार बढ़ गई और खेती बाड़ी में जानवरों से काम लिया जाने लगा। गाड़ी भी उन लोगों ने ईजाद की थी, ये बेजाद बतौर तोहफा मशरक़ करीब को दे दी थी। उसी वजह से सफ़र के लिए बाकायदा एक निज़ाम तैयार किया गया था। हज़रत यूनुस की इस कौम आशूर ने वक्त को बरसों को 12 महीनों में तकसीम किया, हफ्ते के 7 दिन मुकर्रर किए, और ये तकसीम हमारे अहद तक चली आ रही है। हफ्ते के पहले दिन का नाम इन्होंने यौम शम्स रखा था, इसलिए कि हर दिन सूरज की पूजा के लिए मखसूस था। दूसरे दिन का नाम यौम कमर मुकर्रर हवा, इसलिए कि उस रोज चंद की पूजा होती थी। हफ्ते का आखिरी दिन यानी हफ्ता या शनब्बे या सितारा जुहल से मंसूब था। वक्त की तकसीम के साथ इन लोगों ने साया नापने के तरीके और शमसी घड़ियां यूनानियों तक पहुंचाएं ताकि वो वक्त का हिसाब लगा सकें, और एक ऐसा फार्मूला तजवीज़ कर दिया जिससे गहना के मुतालिक पेश गोई की जा सके। मौजूदा दौर के मंतका बरूज की 12 अलामतें तकरीबन यही हैं जो आशूरियों की थीं। आजकल जो पैमाने और वजन राइज हैं उनमें से बेशतर आशूरियों ही से बाबल और शाम की सरजमीनों में पहुंचे थे। आशूरी यानी हजरत यूनुस की कौम ज़राअत पेशा थी, चूंकि नैनवा और इसके आसपास की मुमलिकत में काबिल काश्त ज़मीन बहुत कम थी, और जो थी वो सरजमीन बाबल की तरह ज़रख़ेज़ और शादाब ना थी। इसलिए इन्होंने लौटमार को अपना पेशा बनाया। इस तरह वो आसपास की अक़वाम को अपनी जनगजुई से मरूब और ज़ेर करते चले गए। आशूरियों ने अपनी सल्तनत को अपनी ताकत और क़ुव्वत से बहुत वुसअत दी। ये बड़े जंगजू अरब थे, और जब किसी को अपना हदफ बनाते तो ज़ेर किए बगैर न छोड़ते थे। मगरिब और जुनूब मगरिब की जानिब हत्ता कौम को मगलूब किया, हालांकि हत्ता अपने आप को नाकाबिल तस्खीर ख्याल करते थे, इसलिए कि इन्होंने सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल शुरू किया था। पर आशूरी इन पर भी गालिब आए। फिर फ़लस्तीन को आशूरियों ने मुती करते हुए मिस्र तक एलगार की, यहाँ तक कि मिस्र की वसी व अरीज़ मुमलिकत भी इन्हीं आशूरियों की ताबे और ज़ेर रही। मशरिक़ और जुनूब मशरिक़ की तरफ है, इनमें कोहिस्तान दमाविन तक का सारा इलाका ईरानियों से आशूरियों ने छीन लिया था, और ईरान के हमसाए में ईरानी अरबों की एक इंतहाई ताकतवर और वसी थी। आशूरियों ने इस पर भी हमला आवर होकर उसे ऐसा तबाहवाओ किया कि वो सल्तनत सदियों तक बहाल ना हो सकी। कौम यूनुस को 3 अहद में तकसीम किया जा सकता है। इस कौम का पहला अहद 1500 कबल मसीह से 900 कबल मसीह तक कायम रहा। इस अहद का नामवर बादशाह नगलत पिलासर था। इसने बाबल और आसपास के इलाकों को फतह किया। उसके अहद में अरब के सहराओं से आरामी नाम की कौम ने आशूरियों पर
हमला आवर होकर इन्हें नुकसान पहुंचाया था। हजरत यूनुस के कौम का दौसरा दरअहद मुतवस्सत कहलाता है। ये अहद 900 की दूसरा दूर से 745 कबल मसीह तक कायम रहा। इस अहद में आशूरी संभले और आशूर से अहद आरामियों को निकालकर अपनी हुकूमत कायम। इस अहद का मशहूर बादशाह नसर पाल दोयम था, जिसने 884 से 860 साल कबल मसीह तक हुकूमत की। उसने अपनी फतूहात से आशूरियों को कदीमी हदों तक पहुंचा दिया। ज्यादा अरसा ना गुजरा था कि आर्मीनिया से एक कौम इन्हें और आशूरियों पर हमला आवर हुई और आशूरियों से कुछ इलाके इन्होंने छीन लिए। आशूरियों का तीसरा दूसरा दौर आशूर जदीद कहलाता है। आशूर जदीद का अहद हुकूमत 600 साल कबल मसीह तक कायम रहा। इस अहद में 5 बादशाह हुए, जिनमें सनाखरीब आशूर बनी पाल खास तौर पर मशहूर हुए। आशूर बनी पाल के ज़माने में आशूरी क़ुव्वत अपने पूरे उरूज पर थी, लेकिन इसके जानशीन आशूरियों की ताकत और क़ुव्वत को बरकरार न रख सके और तंजिल का शिकार होना शुरू हो गए। कहते हैं आशूरियों की ज़बान बाबली और रस्म ख़त्मीखी था। सल्तनत आशूर के बादशाहों के बहुत से कतबे और दीगर आसार खुदाई से दस्तयाब हुए हैं। आशूरियों को तारीख नवीसी से बहुत शगफ था। ये लोग मिट्टी की तख्तियाँ या लोहे बनाते, इन पर ख़त्मीखी में हालात व वाक़यात ज़ब्त तहरीर में लाते, आखिर में उन लोगों को भट्टी में पका लेते। इस तरह इन्होंने ना सिर्फ किताबें बल्कि कुतुब खाने मुरतब किए। ये लोहे नैनवा की तबाही में मिट्टी के नीचे दब गई थीं, जो खुदाई से निकाल ली गईं। ये कदीम ज़मानों की तारीख का बहुत बड़ा माखज़ है। इस कस्म की कई हज़ार लोहे पेरिस के अजाइब घर में मौजूद हैं। मशहूर तरीन कुतुब खाना आशूरी बादशाह आशूर बनी पाल का है, जो खुदाई के दौरान दस्तयाब हवा। आशूरियों ने मुख्तलिफ सनाए और फ़नून लतीफ़ा की बहुत सरपरस्ती की। उनकी सल्तनत में सनत मुजारी, मामारी, कुत्तबा निगारी और नक्काशी वगैरह ने बहुत तरक्की की। नक्काशी में जो मनाजिर पेश किए गए हैं वो न सिर्फ दिलकश हैं बल्कि हैरत अंगेज भी हैं। मिसाल के तौर पर एक जगह बादशाह की शकारगाह का मंजर नजर आता है। इसमें घोड़ों और हिरणों की हरकत और सिकनात इस कदर कुदरती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। उस जमाने में ज़रगरी और खातिमकारी का फन भी अपने उरूज पर था। आशूरियों का बादशाह आशूर बनी पाल जो सन 600 कबल मसीह में फौत हुआ, तो उसके जानशीन में कोई भी ऐसा बादशाह न था जो अजीम सल्तनत की शोहरत को बरकरार रख सकता। आशूर बनी पाल ने अपनी अजमत की जो यादगार में छोड़ी, इनमें बाज़ को उलमा तहक़ीक़ ने महफूज कर लिया है। इनमें वो कुतुब खाने भी हैं जो इसके हुक्म से जुमा किए गए थे। इन कुतुब खानों में इल्म हैत, साइंस और कानून की किताबें और बाबल की मिट्टी की लोहें शामिल हैं। इल्म व अदब का ये बेश बहा कदीम सरमायाब भी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। आशूर बनी पाल की वफात पर बदबख्ती ने आशूरियों का ताज एक शख्स सार इसके सर पर रख दिया। बस इस बादशाह के दौर से आशूरी हुकूमत की बुनियादी मंजिल होना शुरू हो गई, यहाँ तक कि बाबर के बादशाह नेबूपुलासार ने, जो इससे पहले आशूरियों ही का मातहत था, जो अरब था, जिसे खुद आशूर बनी पाल ही ने बाबर का गवर्नर बना दी था, इल्म बगावत बुलंद किया और बाबर में आज़ाद हुकूमत कायम कर ली, जो तारीख के और अपनी कलदानी हुकूमत नाम से मशहूर हुई। दूसरी तरफ के उनकी माजी में आशूर कौम अपने हमसायों पर हमला आवर होकर उनके वसी इलाकों पर काबिज हो चुकी थी। ईरान के भी वसी इलाके इनकी मुमलिकत में शामिल हो गए थे। लिहाजा जब आशूरी कौम में ज़ौफ़ के आसार पैदा होने शुरू हुए तो ईरानियों ने आशूरियों के इलाकों पर कब्जा करने की ठान ली। दूसरी तरफ बाबर का बादशाह नेबूपुलासार भी अपने आप को आशूरी सल्तनत का वारिस ख्याल करता था, इसलिए कि आशूरी अरब थे। बाबर का हुक्मरान नेबू भी अरब था और फिर नेबू को क्योंकि आशूरियों ने ही बाबर का गवर्नर बनाया था और उसने एक तरह से खुद मुख्तारी हासिल करके बादशाहत कायम कर ली थी, लिहाजा वो आशूरियों का अपने आप को जायज़ वारिस ख्याल करता था। अब दो कुव्वतें आशूरियों को ललचाई हुई नजरों से देखने लगी थीं। एक ईरानियों का बादशाह किया कसारा और दूसरा बाबर का बादशाह नीव। इन दिनों तीन तो में बड़ी अहम थीं, जो ताकत और कुव्वत के लिहाज से उरूज पर थीं। एक ईरानी जिसे कौम माद के नाम से भी पुकारा गया था, दूसरी बाबर की सल्तनत और तीसरी मिस्र ईरान यानी कौम माद का बादशाह किया कसहारा ये जुरत भी नहीं कर सकता था कि बाबर को नज़रअंदाज करके एक दम नैनवा पर हमला आवर होकर इस पर कब्जा करे। इसलिए वो जानता था कि बाबर की बड़ी ताकत और कुव्वत थी और बाबर वालों ने
इससे पहले मिस्र के खिलाफ कई मर के सर किए थे, हालांकि मिस्री भी वक्फ ताम बड़ी अस्करी ताकत और कुव्वत थी। बहरहाल किया कसारा ने बाबल के हुक्मरान नेबू के साथ मिलकर नैनवा की तरफ पेशकदमी शुरू की। शहर का मुहासरा कर लिया गया। आशूरियों के बादशाह साराकिस ने अपने दारुल सल्तनत को दुश्मन के नरगे में देखा तो जिल्लत की जिंदगी से यही बेहतर समझा कि आका आलाओ जला कर कुंबे समेत इसमें कूद पड़े। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। एक बहुत बड़ा अलाव उसने भड़काया और अपने अहल खाना समेत इस में कूद पड़ा और अपने आप का खातिमा कर लिया। यूं 606 कबल मसीह में आशूरी खान उनकी राख हुरी तो इस तरह हुरी के इसका ताबनाक नाम सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो गया। इसकी अजमत महज ज़ेब दास्तान के लिए बाकी रह गई। आशूरी हुकूमत के खात्मे पर बाबल के बादशाह नीब को नैनवा का बादशाह तस्लीम कर लिया गया। इस तरह बाबल के बादशाह नेबू और ईरान यानी कौम माद के बादशाह दोनों ने आपस में सुलह का मुआहदा कर लिया, जिसकी रोज से एशिया को चुप तक के तमाम इलाके पर ईरान के बादशाह किया कसारा की हुकूमत तस्लीम कर ली गई। इत्तेहाद का एक ये भी उन दोनों कुव्वतों ने पैवनद लगाया कि किया कसारा ने अपनी शहजादी अमीता की शादी बाबल के बादशाह के बेटे बखत नसर से कर दी। यादर है कि ये वही बखत नसर है जिसने बाबल में मशहूर जमाना मुअल्लक बागात बनवाए थे। इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, जिसे तारीख में कौम आशूर या आशूरी कह कर भी याद किया जाता है, इसका खातिमा हो गया और उनका मरकजी शहर नैनवा भी तारीख के औराक से महरूम होकर सिर्फ यादों की हद तक बाकी रह गया। यद इन्होंने फिरौन के सरदारों ने जवाब में कहा, किया तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें इस राह से फेर दो जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया है, और जमीन में तुम दोनों मूसा व हारून ही की सरदारी हो जाए, और हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। 1000 हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है। जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की तक़दीम व ताख़ीर भी नहीं होती, और अगर तुम्हारा रब चाहता तो जितने लोग जमीन में हैं सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करना चाहते हो कि वो मोमिन हो जाएं? ये तो वो बोले कि हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरिदगार, हमको जालिम लोगों के हाथ से आजमाइश में न डाल। और सब लोग पहले एक ही उम्मत यानी एक ही मिल्लत पर थे, फिर जुदा जुदा हो गए। और अगर एक बात जो तुम्हारे रब की तरफ से पहले हो चुकी है ना होती तो जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते हैं इन्हें फैसला कर दिया जाता है। और अगर अल्लाह लोगों की बुराई में जल्दी करता जिस तरह वो तलब खैर में जल्दी करते हैं, वह उनकी उम्र की मैयत पूरी हो चुकी होती। सूजन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं, इन्हें हम छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में बहकते रहें और कहते हैं कि इस पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नाज़िल नहीं हुई। कह दो कि गैब का इल्म तो अल्लाह ही को है, सो तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। और हर एक उम्मत की तरफ पैगंबर भेजा गया। जब उनका पैगंबर आता है तो उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है और अन पर कुछ जुल्म नहीं किया जाता। ये दुनिया की जिंदगी की मिसाल मीना की सी है कि हमने उसको आसमान से बरसाया, फिर इसके साथ सब्जा जिसे आदमी और जानवर खाते हैं मिलकर निकला यहाँ तक कि जमीन सब्जे से खौशनुमा और आरास्ता हो गई। और जमीन वालों ने ख्याल किया कि वो इस पर पूरी दस्तरस रखते हैं, न गहाँ रात को या दिन को हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने इसको काट कर ऐसा कर डाला कि गोया कल वहाँ कुछ था ही नहीं। जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हम निशानियाँ उसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को इससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ पहुंचने पर हमें भी पुकारा ही ना था। उसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके अमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं। जीद और इनमें से अक्सर सिर्फ जन की पैरवी करते हैं और कुछ शक नहीं कि जन हक के मुकाबले में कुछ भी का रामद नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से वाकिफ है, यानी वो जो ईमान लाए और परहेजगार रहे उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बशारत है और आखिरत में भी अल्लाह की बातें बदलती नहीं। यही तो बड़ी कामयाबी है। ये वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चांद को मुनव्वर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये
सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया। समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, नहीं तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ इफ्तरा करे और इसकी आयतों को झुठलाए। बेशक गुनाहगार फलाह नहीं पाएंगे। वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चांद को मनूर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है। समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फराहम है। आखिरकार मछली ने यूनुस को निगल लिया और वो मलामत ज़दा था। अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो रोज क़यामत तक इस मछली के पेट में रहता। अल्लाह वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चांद को मुनव्वर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है। समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है। यद लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों का बीमारियों की शफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ पहुंची है। ये तुम्हारा रब तो अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर कायम हुआ दी हर एक काम का इंतज़ाम करता है। कोई उसके पास इसका अज़न नून न किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा रब है तो उसकी इबादत हासिल करवाओ। भला तुम गौर क्यों नहीं करते और कहते हैं कि इस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नाज़िल नहीं हुई। कह दो कि गैब का इल्म तो अल्लाह ही को है, तो तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। वो जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं और दुनिया की ज़िंदगी से खुश और उसी पर मुतमईन हो बैठे और हमारी निशानी व से गाफिल हो रहे हैं, उनका ठिकाना इन अमाल के सबब जो वो करते हैं दोज़ख है। और बहुत से लोग हमारी निशानी व से बेखबर हैं। दाल अल्लाह शरीरों के काम संवर नहीं करता। हमद हकीकत यह है कि तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवागिर हवा और कायनात का इंतज़ाम चला रहा है। या अल्लाह तो लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। कह दो कि लोगों तुम्हारे रब के हाथ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो जो कोई हिदायत हासिल करता है तो हिदायत से अपने ही हक में भलाई करता है, और जो गुमराही इख्तियार करता है तो गुमराही से अपनी ही नुकसान करता है। और मैं तुम्हार वकील नहीं हूँ। और अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो इसके सिवा इसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुमसे भलाई करनी चाहे तो उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है फायदा पहुंचाता है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। और जब हम लोगों को तकलीफ पहुंचने के बाद अपनी रहमत से आसाइश का मजा चखाते हैं तो वो हमारी आयतों में हीले करने लगते हैं। कह दो कि अल्लाह बहुत जल्द हीला करने वाला है, और जो चले तुम करते हो हमारे फरिश्ते उनको लिखते जाते हैं। और इनमें बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं, तो क्या तुम बहरों को सुनाओगे अगरचा कुछ भी सुनते समझते ना हूँ। और बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ देखते हैं, तो क्या तुम अंधों को रास्ता दिखाओगे अगरचा कुछ भी देखते भालते ना हूँ। हुआ और अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता चला। कह दो कि लोगों तुम्हारे रब के यहाँ से तुम्हारे पास हक आ चुका है, तो जो कोई हिदायत हासिल करता है तो हिदायत से अपने ही हक में भलाई करता है, और जो गुमराही इख्तियार करता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है। और मैं तुम्हारा वकील नहीं हूँ।